to another episode of Basement Batik. Iftikhar Saab jo hai, he is the founder and editor of Khorasan Diary, DLA and TTP पे मैं focus करूंगा. I think the state of Pakistan ने एक बहुत बड़ी miscalculation जो है वो की थी जो आज तक वो भुगत रहे हैं to create that differentiation within the people's minds कि ये दो अलग entities हैं. अभी हम देखते हैं कि थोड़ी बहुत we listen of these bits happening within the Taliban. How credible are these? अभी हमने देखा अमेरिका ने भी सारे हक्कानियों को निकाल दिया from their list. अफगान तालिबान went through a transition because the Taliban are Taliban. उसके अंदर भी जो है Gen Z है, उसके अंदर भी boomers हैं, उसके अंदर भी अलग-अलग किस्म के लोग हैं. Even it's not Hibatullah Akhundzada who actually makes the decision. It's the 14 shuyukh who surround him. जो यूरोपियन और अमेरिकन backed इदारे हैं, they try to portray Sirajuddin Haqqani as a replacement for Kandahar. There's been a shut up call from the supreme leader. अफगान तालिबान की लीडरशिप को हम जानते हैं और जब भी उनसे मुलाकात होती है तो वो कहते हैं कि सोशल मीडिया ने सारा काम खराब. लेकिन अभी नूर वली मसूद साहब का एक स्पीच आई थी जो उन्होंने उर्दू में किया है माशाल्लाह वेरी नाइसली डन. उनकी जो मीडिया टीम है वो काफी अच्छी होती जा रही है. देखें जो फतवा वो जिसका वो जिक्र कर रहे हैं दैट इज आफ्टर द वाना ऑपरेशन 2004 के बाद. अगस्त 26 2024 जो बलूचिस्तान में अटैक्स हो रहे हैं उसका तरीकाकार जो है वो बदलने शुरू हो गया. नवंबर के अंदर पाकिस्तानी स्टेट ने ये सोच बनाई. बलूचिस्तान चूंकि स्कैटर्ड पॉपुलेशन है, इट्स द लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ एरिया, स्मॉलेस्ट इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन. So the state needs to extend its footprint in terms of के अपनी operational base और legitimacy और sovereignty को जो है वो establish किया जा सके. And you know, Iran has a lot of, let's say, strategic depth inside Pakistan. And it's going to be a problem for Pakistan. It also has to do a lot about, what Trump and Mohammed bin Salman will decide in terms of the larger issue for the Palestinian state. And so that will sort of, bring down that पूरा एक domino effect जो है वो शुरू हो जाएगा. जो सीरिया का conflict है, that's very central to this to Pakistan, Afghanistan, to Iran and the larger Middle East. And it has this potential कि it's a ticking time bomb. Hello everybody and welcome to another episode of Basement Batik. आज हमारे शो में इफ्तिखार फिरदौस साहब हैं. इफ्तिखार साहब जो है, he is the founder and editor of Khorasan Diary, writes on violent conflicts and ideologies, which pretty much means that he's a terrorism expert. And oddly enough, he has a PhD in psycholinguistics, so which I don't know how it ties to this, but we'll ask him about that. He's a part-time academic and a full-time journalist. So welcome to the show, and thank you so much for your time. I know we've been trying to get this going for a few days, in fact, a month. Ramadan time pe ho nahi paya. So welcome on the show. Thank you, Shah, and I'm very sorry कि हम इसको पहले नहीं कर सके. But anyway, जिस वक्त हो भी रहा है, I hope it actually serves the purpose. Inshallah, I'll make sure that it serves the purpose. हुआ कुछ इस तरह के इस टॉपिक पे बात करना. And before I come to the topic at hand, I just want to tell everybody कि इनसे मिला कैसे. हुआ ये कि मैंने इनको पहली बार, बल्कि मैं देखता रहता हूँ on Twitter, तो बातचीत मैं देखता रहता था, कुछ बातचीत तो नहीं होती थी. लेकिन ये जब एक दो प्रोग्राम्स में आए on TV, पाकिस्तान मेन स्ट्रीम मीडिया पे, तो I started realizing very quickly कि यार this guy seems to know much more than normally हम लोग जो मेन स्ट्रीम मीडिया पे सुनते हैं. So I thought यार he's the right person to talk to. और आई थिंक इट वाज अफसार आलम साहब जिनके शो पे आए थे और उन्होंने बीएलए के ऊपर स्पेसिफिकली बात की. और अब ये मैं चाह रहा था इस टॉपिक पे आऊँ राइट एट द टाइम जब ट्रेन इंसिडेंट हुआ था. उस वक्त आई वांटेड टू नो मोर अबाउट बीएलए. आपने जो बात की उस जमाने में अबाउट बीएलए के लिंक्स क्या हैं, द कर्डिश एलिमेंट, एंड इमीडिएटली दैट माय द बेल रंग इन माय हेड, दिस इज द गाय आई एम लुकिंग फॉर. सो मैंने अफसार भाई को आई रीच्ड आउट टू हिम, लाइक अफसार भाई प्लीज बिटवीन से मुझे इंट्रो कराते ताकि मैं अपने शो पे बता लूं. तो दैट्स हाउ आई गॉट टू नो यू. एंड माय इंट्रो टू द शो इज दिस मच दैट इस टॉपिक पे बात करना इतना मुश्किल है. आप इसको बेहतर जानते हैं इफ्तिखार भाई कि द मोर यू टॉक अबाउट दिस इट्स वेरी हार्ड टू कंटेन दिस टॉपिक. मैं चाहता हूं कि मैं इसको पाकिस्तान पे कंटेन रखूं, लेकिन इसके ताने बारे इतने मिलते हैं विद Iran, with Afghanistan, India, all the way back up to Israel and Iraq. It's very hard to contain the topic. So I'll try to keep it contained to the Pakistani context, and then I'll try to expand towards the end into the regional context. ठीक है? तो सबसे पहले मुझे आप ये बताएं कि psycholinguistics ये क्या चक्कर है और what happened and how does this help in your work, if at all? I mean, I was interested. मेरे वालिदैन चाहते थे कि मैं डॉक्टर या इंजीनियर बनूं. And I was after completing my initial education, because I'm from the tribal areas, मैं पेशावर में पला पड़ा. I mean, I realized that I wasn't made for that.
And then I sort of went into college studying philosophy and literature. और मेरे वालिदैन ने कहा कि फिर आप जो है वो ठेला लगा देंगे क्योंकि पाकिस्तान में इसके अलावा कोई करियर ऑप्शंस है नहीं. And then slowly and gradually, I sort of showed a mark in what I was studying, and I developed acute sense of an understanding based on my philosophical readings that it was language that I was looking for and how our worldview shaped. And I went on to study in terms of doing my postgraduate and my doctoral thesis. So I got a scholarship and I went to the US to study. और वहाँ पर जो है I chose psychological linguistics because and it's helped me tremendously because जो मेरी thesis भी है that's in relation to America's war in Afghanistan in terms of the language that was being used. So it's more of a discourse analysis of tropes of war that was implied in Afghanistan and Pakistan bordering areas. So that helped me sort of analyze a lot of literature, a lot of discourses, and a lot of subjects which normally जो सीटी से loosely जो है वो connected होते हैं लेकिन उसको जो है वो देखने का मौका नहीं मिलता. So I developed this understanding कि it's not just the kinetic action that's important, it's also to how the Absolutely. spectrum of the propaganda actually works and how Yeah. discourses are created, generated, and expanded. Yeah. So I don't want to use a lot of linguistic terms. लेकिन then academia से मैं वापस आया and I was teaching for a stint at Singapore और वापस आया पाकिस्तान and then I started at the University of Peshawar because I wanted to teach there. लेकिन by the time I came back things were totally disoriented और मुशर्रफ साहब ने जो है अपनी emergency लगा दी and फिर वो suicide bombing वगैरह शुरू हो गई because the city that we lived in was very different. तो बार्ब वायर और कंक्रीट आना शुरू हो गए. And then I realized कि there's something more that's happening और जिस तरह सबको मशवरे मिलते हैं कि मुल्क छोड़ के चले जाएं तो I mean मैं नहीं है and I joined journalism. तो इनिशियली जो है वो कोई एंकरिंग शैंकरिंग जो है वो मुझे मिली लाहौर में बट 6 महीने में I realized कि I'm not made for the TV stuff. I'm made for like more of the reportage stuff. And then I just get out of there, and Yeah. uh, you know उसके बाद मैंने अपना करियर एज ए जर्नलिस्ट शुरू किया. कोई 17 साल हो जर्नलिज्म. And majority of it has just been in relation to all the conflict zones and a lot of work, not just Pakistan and Afghanistan, the Middle East as well as Syria and Iraq, Right. with 2014 and 16. So yeah, so it's a subject that interests me to this day in terms of how our society is shaped or uska impact kya hai. And we can talk more of it during this podcast. Yeah, and that's perfect because when I talk about all these two main threats in the Pakistani context, on the western border पे BLA and TTP पे मैं focus करूंगा और उसका एक aspect non-kinetic भी है specifically on the border narratives. जिस तरह ये मसूद साहब की नूर वली मसूद साहब की एक speech आई थी. So I think आपने भी खुरासान डायरी भी शायद इस पे start की होगी because you mentioned how the war of narratives is very important. So maybe खुरासान डायरी वाज एक्चुअली बिकॉज़ 2001 में जब ये सब कुछ शुरू हुआ सो हम तो वैसे एरिया से ताल्लुक रखते थे कि वी वर डायरेक्टली इंपैक्टेड लेकिन कुछ ज्यादा समझ नहीं आई एंड वी वर टू यंग टू एक्चुअली अंडरस्टैंड के व्हाट इज गोइंग ऑन. ओवर द इयर्स वी डेवलप्ड एन आइडिया. मैं 2019 में आई वाज इन अमान in Jordan working on something and I realized कि दोहा जो है वो मुज़ाकिरात शुरू हुए and what I heard across the table is despite the fact on what the global powers in Pakistan was saying कि क्या होगा और उसका अलर्ट जो है वो नजर आ रहा था कि इसका इम्पैक्ट जो है वो काफी वायलेंट होगा. तो मैंने अपने कॉलीग टीपू से जो है वो बात की क्योंकि वो भी काफी अरसे से मेरे साथ हम दोनों इकट्ठे जो है वो काम कर रहे थे. एंड आई टोल्ड हिम के क्योंकि जो भी हम वेस्टर्न रिपोर्टाज जो देख रहे थे ओवर द लास्ट 2 डेकेड्स इट ऑलवेज मिसेस द पॉइंट और उसमें सर्टेन एंगलिंग होती है जिसमें फैक्ट्स जो है वो काफी ब्लर्ड हो जाते हैं और वो डिस्पाइट द फैक्ट एंड अनफॉर्चुनेटली ऑल्सो कि पाकिस्तान के अंदर ये सब कुछ जो है हो रहा था और अफगानिस्तान के अंदर मेरे ख्याल में इन दोनों ममालिक में एक्चुअल जो इसका क्रक्स है टू अंडरस्टैंड और अपना नैरेटिव लिखना इट हैजंट सॉर्ट ऑफ हैपेंड. वो डिस्कोर्सेज नहीं है, वो अंडरस्टैंडिंग नहीं है. कोई इस तरह की कोई बड़ी किताब भी नहीं लिखी है जिसको हम कह सकें कि उसने कोई ग्लोबल अचीवमेंट जो है वो की है टू सॉर्ट ऑफ अंडरस्टैंड व्हाट्स हैपनिंग. और मेरा ये गिला भी है फ्रॉम द प्रीवियस इयर्स कि जब भी हम रेफरेंसेस ढूंढते हैं कि क्या हुआ है तो कोई फॉरेन ऑथर ने उसके ऊपर जो है वो लिखा होता है. exactly. लोकली नॉलेज जो है वो बहुत जी, कम है. तो खुरासान डायरी का एक आइडिया ये था कि वी फिल इन द गैप और आगे जो एटलीस्ट वी हैव सम सॉर्ट ऑफ नॉलेज बेस. देयर वर पीपल इन दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड हु एक्चुअली अंडरस्टूड इन व्हाट्स हैपनिंग एंड इफ दे डिडंट इवन अंडरस्टैंड दे लेफ्ट इनफ ऑफ नॉलेज
जिससे जो है बाद में डिसाइफर करके जो है पता लग सके कि एक्चुअली व्हाट वाज हैपनिंग। Makes sense. And I'm glad you did that because but we need that local expertise. And like आपके अब आलम आपके शो में भी इसमें काफी स्ट्रेस किया गया था कि ये ना हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया पे ना हमारे ऑल्टरनेट मीडिया यू कैन लाइक यूट्यूब चैनल्स नो वंस टैकलिंग दिस ऑन द पाकिस्तान साइड हम लोग को इंडियन साइड पे बहुत प्रोपेगेंडा मिल रहा है एंड इट्स हमारे इंडियन दोस्त जो हैं सभी भी प्रोपेगेंडाइज करते हैं किस चीज को वो तो इसको इतना वो डाउन डाउन कर देते हैं okay, the only way that they can make it look flashy is, they're using digital boards and digital markers, and they think it's good content. It isn't. I think So, anything that has ISI on it sells in India. और अब वो yeah, पाकिस्तान में भी वो बिकता है कि आप किसी को भी अभी आपके इंटरव्यू से जो है वो थोड़ी देर पहले पॉडकास्ट से सॉरी थोड़ी देर पहले देयर वाज एन इंसिडेंट सुबह जिसमें बलूचिस्तान के अंदर कोई 8 मजदूरों को जो है वो गोली मार दी जी, गई। जी, जी, मैंने अ, देखा। और उसका क्लेम जो है वो बलूच नेशनल आर्मी है उन्होंने किया है। और बेचारों के शनाख्ती कार्ड रखे हुए हैं और लिखा हुआ है कि ये सारे आईएसआई के एजेंट थे, तो हमने इनको जो है वो मार दिया। अनफॉर्चुनेटली इस मुल्क के अंदर एक ऐसा तबका है और ग्लोबली भी एंड देयर फ्रॉम पाकिस्तान जो ये समझते हैं कि शायद स्टेट खुद जो है लोगों को मरवा रहे हैं और जी, इल्जाम जो है वो स्टेट इंस्टीट्यूशंस पे डाल लेते हैं कि ये चाहते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट हो। मेरे ख्याल में ये कंफ्यूजन जब तक रहेगी तो ये chaos भी खत्म नहीं होगा। जी, कुछ क्लैरिटी आनी चाहिए और वो क्लैरिटी इसलिए भी नहीं है कि उसके इसमें स्टेट का कसूर रहा है कि उसने जी, अपने डिस्कोर्सेस को जो है वो फैक्चुअली ओरिएंट नहीं किया, बल्कि बहुत सारी जगहों में झूठ का सहारा लिया है और उसको सच बनाने की कोशिश की है। क्योंकि या तो वो फैक्ट्स थे नहीं या वो अंडरस्टैंडिंग नहीं थी कि इन फैक्ट्स को इस्तेमाल जो है वो कैसे करना है। एंड आई होप दैट रियलाइजेशन कम्स। अभी मुझे उसकी थोड़ी बहुत रियलाइजेशन लगती है लेकिन उस लेवल की नहीं है कि जिसमें लोगों को यकीन दिलाया जा सके। और अनफॉर्चुनेटली स्टेट के मैकेनिज्म्स जो हैं वो इस तरह रिग्रेसिव तरीके से जो है वो अप्लाई होते हैं कि फिर लोगों को जो थोड़ा बहुत ट्रस्ट होता है वो पब्लिक डोमेन में वो भी जो है वो स्टेट पे जो है वो नहीं रहता। तो आप कुछ भी कहते रहें लोगों ने यकीन नहीं करना क्योंकि आप जी, सच भी जो है की तरीके से वो बता रहे हैं। सही, सही। एंड दैट्स अनफॉर्चुनेट व्हेन यू हमारे कॉमन परसेप्शन में हमारी जो फौज जो करती है, उनकी जो प्रोपेगेंडा मशीन करती है, वो एक साइड पे है। लेकिन हमारे कॉमन परसेप्शन में भी ऐसा है कि यार द स्टेट इज़ ऑल पावरफुल एंड they're controlling all sides. तो चाहे वो जो हमारे एडवर्सरीज भी हैं उनको भी हमने कुछ तरीके से हमने उनको कंट्रोल किया हुआ है और ये पूरा जो है एक कंसर्टेड एफर्ट है कि उसको एनवायरनमेंट को इतना ग्रे रखा जाए कि हम्म। इट्स कंट्रोल्ड ऑपोजिशन टैक्टिक कि हम जिस तरह हम लोग अपनी पॉलिटिक्स में देखते हैं कि हमारी गवर्नमेंट और ऑपोजिशन दोनों कंट्रोल है वैसे हम देखते हैं हमारी kinetic action जो हमारे लेते हैं हमारी forces and their adversaries are all controlled. If that's the easy way to look at it. Well, what I'll do is I'll just jump into our topic now. Okay, so मैंने तो बात की थी and I'll start from the local context. Okay, local context में सबसे पहला threat जो आया है in terms of kinetics is the TTP threat. ठीक है, तो TTP पे जरा आ जाते हैं कि और आप है भी KP के तो probably have a lot of insights onto this. लेकिन TTP for a long time एक तो TTP की पैदाइश होती है in 2004 जहाँ तक मुझे याद आता है Nick Mohammed was one of the very first leaders of TTP was the one में TTP नाम नहीं था शायद कोई something मुजाहिदीन नाम था इत्तेहादुल मुजाहिदीन या कुछ था शायद मैंने आपकी खुरासान डायरी पे देखा है that name has resurfaced again now तो अगर आप हमको थोड़ा-सा well, not really going back to from the start and पूरा genesis of TTP, but more like TTP आज है क्या? और उनकी अफ़गान तालिबान let's take it from 2021 onwards, okay? जब से तालिबान came back into power in Afghanistan. TTP की इनके साथ रिलेशनशिप क्या है? And I see like three kinetic forces inside Afghanistan right now, or Afghanistan, Pakistan. Let's go AFPAC, okay? Um, Taliban, Afghan Taliban. There's TTP, and there are ISKP. Okay, so there's a lot of let's say intermingling between these three groups. But how do you see their relationship between these three power players? The relationship Punjab has been sort of cemented in the 80s जब ये रशियन वॉर जो है वो शुरू हुई अफगानिस्तान के अंदर रशियन इन्वेजन ऑफ अफगानिस्तान। ऑलमोस्ट एवरीथिंग दैट्स रिटन एट दैट टाइम जो उनकी प्रेमोनिशन थी और फोरकास्टिंग थी इन टर्म्स ऑफ हाउ थिंग्स वुड टर्न आउट एंड व्हाट दे नीड टू डू टू मेक इट लुक दैट वे, वो बहुत सारी चीजें जो है वो उसी तरह हुई हैं जिस तरह उन्होंने फोरकास्टिंग और प्रेडिक्टिंग की है। दैट मीन्स दैट व्हाटएवर द प्लान वाज जो डिजाइन था उस टाइम पर दैट्स एक्चुअली वर्किंग, नंबर वन। दूसरा जो बेस है जो सारी चीज़ों की, चाहे वो अफ़गान तालिबान है, चाहे वो पाकिस्तानी तालिबान है, चाहे वो इस्लामिक स्टेट है, वो बेस जो होती है उसकी वो हमेशा अल-कायदा आती है।
इट्स द फॉर्मेशन ऑफ अल कायदा। और मैं हमेशा ये बात करता हूँ, इस पॉडकास्ट में भी ये करूंगा, कि बहुत सारे लोगों ने अफगान वॉर के बारे में लिखा, लेकिन मैं आज तक ये समझता हूँ कि उसका जो इम्पैक्ट है वो सिवियरली अंडरमाइंड है, क्योंकि लोगों को नहीं पता कि हुआ क्या था। एंड इफ यू एक्चुअली लुक एट द नंबर्स, फिगर्स, nationalities that were actually coming into Afghanistan outside the golden era of Islam, अगर हम इसको कह सकें, uh, is the largest cross-cultural inter-religious migration that took place. True. और वहां पर जो लोग रहे, वो सिर्फ वहां पर नहीं रहे, बल्कि उसके बाद वो वही आइडिया लेकर जो है वो पूरी दुनिया में जो है वो चले गए। वापस मिडिल ईस्ट, इवन यूरोप, इवन सेंट्रल यूरोप, एज वेल एज द स्टेट्स एंड फार ईस्ट तक जो है ये सारा फैल गया, ये सोच जो है वो फैल गई। Mhm. अब जब टीटीपी की हम बात करते हैं, तो इवन उसका जो ओरिजिनल डिजाइन है, दैट कम्स फ्रॉम अल कायदा एज वेल एज द अफगान तालिबान, एंड आई वोंट गो इनटू मोर डिटेल, लेकिन जो टीटीपी की जो बेसिक शक्ल निकल के आती है, दैट्स बाय 2007। इसके अंदर 9 ग्रुप्स ट्रेडिशनली जो हैं, जो फाटाज होते थे, जो अब मर्ज हो गए हैं खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, वहां से निकल के आते हैं, एंड विद सम पैरेलल सपोर्ट फ्रॉम पंजाब एंड सिंध एज वेल, एंड मोस्टली सेक्टेरियन ऑर्गेनाइजेशंस या कश्मीरी जिहादिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस with them. The initial form में the TTP was more of a tribal militia, आप उसको कह सकते हैं, still trying to figure out in terms of what it was doing। और अब जब 2010 के बाद हम देखते हैं, तो अलकायदा और अफगान तालिबान की जो वक्त की टीटीपी के साथ जो खतो किताबत है, उसमें बहुत क्लियर है कि दे आर एक्चुअली टेलिंग देम कि ये ट्राइबल फॉर्म ऑफ इस्लाम है, इट्स नॉट द एक्चुअल फॉर्म ऑफ इस्लाम, जिस तरह जो है एक मूवमेंट होनी चाहिए, तो वो रिलेशनशिप को इतना मजेदार जो है वो नहीं बनता। And then by 2014, the TTP has almost lost all its top tier leadership, and it's on the run towards Afghanistan. And then, आपस में infighting 2021 2018 तक the TTP remains a loose conglomerate, जिसने अलग अलग ग्रुप्स जो है वो, अब 2018 के अंदर जब मुफ्ती नूर वली महसूद जब आता है, तो ही एक्चुअली पिक्स अप द सेम डॉक्यूमेंटेशन जो अलकायदा ने 2007 में दी थी, एंड ही ट्राइज टू रीफ्रेम द एंटायर टीटीपी बेस्ड ऑन दैट लाइन। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो बात थी उसमें ये था कि आपने कोई सिविलियन टारगेट्स जो है वो नहीं लेने, और आपने सिर्फ पाकिस्तानी स्टेट और उसके एक्सटेंडेड टेंटिकल्स जितने भी हैं उनको अटैक करना है। और इवन फॉरेन एनजीओज एंड ऑल ऑफ इट जितने भी हैं, इनको भी आपने नहीं छेड़ा अगर वो हेल्थ और एजुकेशन से रिलेटेड है, लेकिन आपने देखना है कि हाउ दे सॉर्ट ऑफ वर्क आउट, कि वो हमारे खिलाफ तो काम नहीं कर रहे। उसमें सारे सेक्टेरियनिज्म का, उसमें जितने भी डिफरेंसेस थे ग्रुप्स के, वो सारे खत्म कर दिए। 2024-21 के बाद जब हम देखते हैं, तो some of the major factions of the TTP that are actually dislocated themselves from the main group, वो वापस जो है वो आ जाते हैं। एट दिस पॉइंट जब हम बात कर रहे हैं, तो 9 ग्रुप से टीटीपी जो है 2018 में 13 बन गए, और 2024 में लाइक तकरीबन कोई 76 ग्रुप्स जो है वो बन गए। अब इस टाइम पर जब हम बात कर रहे हैं, लेकिन अब उसकी अफगान तालिबान के साथ क्या रिलेशनशिप है, इट्स एक्चुअली द सेम थिंग, कोई डिफरेंस उसमें है नहीं। उसमें जो स्कूल ऑफ थॉट है, जो आइडिया है, जो उसकी एक्सटेंशन है, या जो उसका बिलीफ सिस्टम है, देयर इज नो डिफरेंस इन इट। आई थिंक द स्टेट ऑफ पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ी मिसकैलकुलेशन जो है वो की थी, जो आज तक वो भुगत रहे हैं, कि टू क्रिएट दैट डिफरेंशिएशन विद इन द पीपल्स माइंड्स के ये दो अलग एंटिटीज हैं। अब जब लोगों को वो कह रहे हैं कि ये दो अलग एंटिटीज नहीं है, तो कोई उनकी बात नहीं मानता। आई थिंक जो टीटीपी पहले थी और जो अब है, इट्स ट्राइंग टू मूव अवे फ्रॉम इट्स ट्राइबल, यू नो जो स्टैम्प है उसके ऊपर ट्राइबलिज्म से निकल कर, इट्स ट्राइंग टू मेक इटसेल्फ मोर ऑफ अ नेशनलिस्टिक। वो एफर्ट्स हैं, आई डोंट सी कि वो सक्सेस है, लेकिन वो एफर्ट्स कर रही है। उसमें उन्होंने बलूचिस्तान में जो है बलूची लैंग्वेज में नशरियात शुरू कर दी, उर्दू के अंदर वो आ गए, पंजाब के अंदर, सिंध के अंदर जो है उनके जी, ग्रुप्स जो है आ गए। लेकिन जो आप इत्तेहादुल मुजाहिदीन की बात कर रहे हैं, उस पे मैं 1 मिनट दो चाहूंगा, क्योंकि दैट्स एन इम्पोर्टेंट टर्न और करंट है बहुत ज्यादा। जी, 2004 के अंदर जो है वो इत्तेहादुल मुजाहिदीन बनी थी, एंड दैट वाज बेसिकली हकानियों ने उनको पुश किया था नॉर्थ वजीरिस्तान के अंदर। और जो सबसे पुराना उस दौर का एक वॉरलॉर्ड मिलिटेंट कमांडर हाफिज गुल बहादुर उसका नाम है, जी, नॉर्थ वजीरिस्तान से, ही वाज मेड देयर लीडर। इत्तेहादुल मुजाहिदीन चल नहीं सका काफी वक्त तक। 2007 में शूरा बना दी गई, जिसका टीटीपी हिस्सा थी, वो कर नहीं सक चल सकी। 2009 में जो है वो दोबारा नहीं चल सकी। अब आकर जो है तकरीबन कोई 15 साल बाद देयर इज एन एफर्ट टू एक्चुअली रिक्रिएट इट, और उसमें वो वाले ग्रुप्स आए हैं पाकिस्तानी तालिबान के, जो टीटीपी का हिस्सा नहीं है। जी,
सो आई सी के जो उसका एक ट्राइबल जो फिनोमिनन है, वो इंटर जो है तालिबान क्लैशेस की तरफ तो जाएगा ही जाएगा, क्योंकि वो एक स्पेस है, कंटेस्टेड स्पेस है। लेकिन इससे जो चीज निकल के आएगी, बाय द टाइम इट एक्चुअली फिजल्स आउट या सॉर्ट ऑफ एम्पावर्स ईच अदर, व्हाटएवर द फ्यूचर होल्ड्स, उसे जो नेसेंट एलिमेंट्स निकल के आएंगे, आई थिंक फ्यूचर के अंदर छोटे छोटे नए ग्रुप्स निकल के आएंगे जो ज्यादा डेडली होंगे, और वो बहुत अर्बन जो है वो फिनोमिनन निकल के जो है वो आएगा, अगर तो इसको जो है वो फेल नहीं किया जाता। यस प्लीज। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो आई थिंक इट काइंड ऑफ टाइज अप विद व्हाट यू सेइंग। मैंने खुद भी यही देखा है कि आइडियोलॉजिकली तो देयर इज नो डिफरेंस, एंड यू पीपल हु नो द कॉन्फ्लिक्ट फ्रॉम व्हेन इट स्टार्टेड बैक इन 2001 जब 9/11 हुआ। तो जब अमेरिकन फोर्सेस आए अफगानिस्तान में, तो उनको हमेशा से ये प्रॉब्लम थी कि हम जब भी इनको मारते हैं, ये पाकिस्तान की तरफ भागते हैं, लगा गया की तरफ, जहाँ उस जमाने में फाटा हुआ करता था। So they came up with what they call the hammer and anvil, and that is when they forced Pakistan army, and they were forcing them since 2002. In 2004, they finally Musharraf Saab caved in, and he sent the forces in, which was a violation of agreements that they had with the tribals. कि भाई हम यहाँ से इनको मारेंगे. The hammer will come from the Afghanistan side, and you guys will provide the anvil and make sure that they don't melt into FATA areas. So वहाँ से ये सारी misunderstanding शुरू हुई. That's how we took on the tribal warlords, and they started going against us. So over a period of time, they become more and more hostile. Uh, ठीक है, in terms of their capacity, शायद वो इतने effective नहीं रहे, because a lot of the Arab elements हो गए हैं जितने भी थे, उन्होंने खुद भी उनको expunge कर दिया है. Maybe there's some still there. You can also expand करते by the Afghan Taliban themselves, like the Salafi groups were told to leave. They didn't want them for ideological reasons. So इसमें आ जाए कि ISK, आप कह रहे हैं कि ideologically they're the same, yes. They're also, even though there's a lot of discrepancy there, for example, Tehreek-e-Taliban Pakistan, by its very name, ऐसा लगता है कि वो पाकिस्तान की geographical integrity को मानते हैं, which is not the case. अब हमारे जो geographical borders जो हैं, वो तो वो नहीं मानेंगे. I don't think they want FATA to be a part of Pakistan itself. They want it to be like a gray area. So Just for a correction, the TTP has actually never said anything in relation to Pakistan as a state, as its mm, existence. mm, Don't want the tribal areas की जो agreements हुई थी, one of the demands की जो negotiations जो पाकिस्तानी state ने शुरू किए थे TTP के साथ और अफगान तालिबान को as mediators थे 2021 के बाद, the reason that it failed was that the demand was by the TTP कि you change the status of FATA back to what it was since 2004. right. 2004 से पहले जो फाटा था उसी को वापस बदलने हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि इसको अफगानिस्तान का हिस्सा जो है वो बना दें या कुछ, बट बाय डिफॉल्ट इट मींस द सेम दैट दे रिक्वायर्ड द पोरस बॉर्डर्स के, ताकि फ्री मूवमेंट जो है उसी तरह जो है वो हो सके। ठीक ठीक है. अच्छा, लॉजिस्टिकली भी आइडियोलॉजी की बात करिए. लॉजिस्टिकली भी अगर आप देखें, देयर इज अ लॉट ऑफ जंपिंग फ्रॉम वन ग्रुप टू अनदर. तो एसकेपी का कोई कमांडर होगा, कभी टीटीपी का बन जाएगा, फिर वो उसका फड्डा किसी से हो जाएगा, दोबारा एसकेपी पे चला जाएगा. इनकी वेपन ऑन अ सिस्टम ग्रास रूट जितने. लेवल, ऑन अ ग्रास रूट लेवल ये बात ठीक है, लेकिन आईएसकेपी एक टोटल डिफरेंट फिनोमिनन है इन टर्म्स ऑफ इट्स समथिंग लाइक जो इस खित्ते ने पहले देखा नहीं, नंबर वन। आई नेशनल थिंक प्रीटी मच. इट्स एक्चुअली वो एक बहुत मिडिल ईस्टर्न फिनोमिनन है। जो तालिबान, जो तहरीक तालिबान है, चाहे वो पाकिस्तान है या वो अफगानिस्तान है या वो ताजिकिस्तान है, उसमें जो बिलीफ सिस्टम है वो बेसिकली देवबंदी बिलीफ सिस्टम है। लेकिन जो आईएसकेपी है वो ज्यादातर सलफिस्ट जो है, जो मूवमेंट है अच्छा. उससे जो है मुतासर है। तो वो बिलीफ सिस्टम्स में जो है वो काफी जो है वो फर्क है, एंड दैट इज व्हाई दे कीप टारगेटिंग द यू नो अफगान तालिबान कंसिस्टेंटली। आईएसकेपी उनको टारगेट करता रहता है, बिकॉज उनका जो स्टेट का जो तस्वुर है इस्लामिक स्टेट का, उसमें नेशनलिज्म और उसकी नेशन स्टेट की बाउंड्रीज जो है वो काउंट नहीं होती। एंड सो व्हाट दे एक्चुअली बिलीव इन इज दैट कि ये सारा हम इसको वापस ले जाएंगे, यू नो ओके. तो ये जहाँ से कैलिफेट जो है वो खत्म हुई थी, और उन्होंने नाम भी वही जो है वो तजवीज किए हैं इन सारे आसान एरियाज, वाला हमने देख लिया. ऑब्वियसली ईवान, खुरासान एंड ऑल ऑफ इट। लेकिन जो आपने भी ये काम किया है. वी एक्चुअली वर लुकिंग, जो इफ यू लुक एट द एम्बलम, बहुत सारे लोग, एंड इट्स गुड यू आस्क्ड एक्चुअली, बहुत सारे लोगों को पता नहीं है खुरासान का मतलब क्या है। इफ यू लुक एट द एम्बलम इन माय बैकग्राउंड, वो पहाड़ों से एक सूरज निकला हुआ है। खुरासान बेसिकली इट मींस वेयर द सन राइजेस। अच्छा. सो
So this is what it actually means, and it was supposed to be, under the Sassanids Empire, जो इस side पर Afghanistan, Iran, Central Asia, इस area को, because it was fertile, it had water, and so they actually said कि this is the area which is known as the Khorasan. जब हम अपना काम जो है वो कर रहे थे, तो एक तो उसके eschatological जो है वो हैं markers हैं on what others believe, but then there are also geographical markers in terms of what we thought were important. तो ऐसा कोई खिता था नहीं जिसको कवर करने के लिए आप क्या कहें. बाकी अगर आप थिंक टैंक वगैरह बनाते हैं और उसका नाम कोई इंस्टीट्यूट या पॉलिसी नेटवर्क या कंसोर्शियम रख देते हैं, तो वो बहुत becomes ज्यादा too Western. यार इट एक्चुअली डजंट सर्व अ पर्पस. तो हम जैसे लोगों के Yeah. लिए वो लुकिंग फॉर समथिंग न्यूआंस्ड. आई थॉट कि ये नाम जो है वो बेहतर जो है वो रहेगा. एंड सो वी अल्टीमेटली It सॉर्ट makes ऑफ sense. Makes sense. Definitely. लेकिन like ISKP is a different phenomena. They are very high tech. They're loosely internationally connected with each other. And ISKP, in terms of its what it's trying to do, is it's actually trying to undo on what the Taliban have done on an Yeah. ideological level, on a kinetic level, as well as in terms of its propaganda, even in Pakistan and Afghanistan and Central Asia. जिस तरीके से वो rapidly ideologically expand हो रहा है, I think उसका बहुत कम लोगों को इदराक है. Mhm. Right, true. And which is kind of scary too, because this is a common threat that Pakistan and Afghanistan share right now. So, and I'm saddened in a way that there is not enough understanding हम दोनों states के दरमियान. यार एक common enemy जब होता है तो बंदा at least अपने differences aside रखता है for the time being. But I'll come back to that. ये बताएं कि हमने I just want to understand Afghanistan, sorry, अफगान तालिबान a little bit better. वहाँ पे हम लोग अक्सर दो ग्रुप्स के नाम सुनते हैं. एक तो कांधारी ग्रुप है जिससे headed by Habibatullah Akhundzada, who's their supreme leader at the moment. And then you have the Sirajuddin Haqqani group, which was, for lack of a better term, was seen as lackeys of the ISI, at least in the time of the Afghan war, Soviet Afghan war. So अभी हम देखते हैं कि थोड़ी बहुत we listen of these spits happening within the Afghan Taliban. How credible are these? अभी हमने देखा Americans ने भी सारे हक्कानियों को निकाल दिया from their list. Why only the Haqqanis? Were there others that they still haven't? मैंने देखा अभी भी कुछ अफगान है उसके अंदर जो तालिबान की गवर्नमेंट में है, उनको नहीं निकाला लेकिन सारे हक्कानियों को निकाल दिया. तो ये हक्कानी कौन है? Are they more pro Pakistan or that's not the case? देखें, in terms of, I won't say pro-Pakistan. I think that ship has long left the harbor. वो उस तरह है नहीं. अगर हम करंट सिचुएशन की बात करें, एंड आई वोंट गो, क्योंकि हिस्ट्री बहुत ज्यादा है टू एक्सप्लेन ऑन वेयर वी आर. सो मीडिया इसमें जो है वो शुरू करते हैं इन टर्म्स ऑफ हाउ थिंग्स स्टैंड राइट नाउ. एक स्पेट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स जो है वो हर तरफ से जो है वो शुरू हुई. कि ग्रुप्स जो है वो हैं अफगानिस्तान में. दो आपने बता दिए जो होस्ट में, द हकानीज एंड कंदाहार के अंदर जो है हैबतुल्लाह अखुंज़ादा. And then the third one is basically the Kabul group, which includes the people who were negotiating in Doha, which include the Abdul Salam Hanafi and Mullah Biradar and all the rest of the paraphernalia along with it. लेकिन जो technically what's happening is कि Kandahar is trying to consolidate its power right since 2021. और उसके अपने reasons हैं. वो they अफगान तालिबान went through a transition. और जिस तरह, because the तालिबान और तालिबान, उसके अंदर भी जो है जेनजी है, उसके अंदर भी बूमर्स हैं, उसके अंदर भी अलग अलग किस्म के लोग हैं, और वही जो है थॉट प्रोसेस लेके आते हैं. बट जो आइडिया दिया गया था दोहा मुज़ाकिरात के अंदर और जो नैरेटिव है, यू मस्ट रिमेंबर, अभी तो उसको 3-4 साल ही हुए हैं, कि दीज आर नॉट द तालिबान, और वो तालिबान 2.0 का जो है वो जिक्र किया गया कि वो काम नहीं करेंगे. तो guarantees that were given by the people who were negotiating in Doha. And then obviously the Haqqani is also backing them in terms of it. What Kandahar's vision is, it's too brittle at this point. Sure. And that's why even it's not Habatullah Akhundzada who actually makes the decision. It's the 14 shuyukh who surround him. So for every decision that is made, he has to get the approval of all of them in terms of its implementation also. और आज भी हैबतुल्लाह अखुंज़ादा ने जो स्टेटमेंट दी है, और फिर उसको अफगान तालिबान के स्पोक्स पर्सन ने जो है ये बात की, बल्कि ईद के दिन भी स्पेसिफिकली उसने यही बात की कि रेजिस्ट ना करें जिस फॉर्म ऑफ शरिया को जो है मैं इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ. कुछ वेरी क्लियर कट इंडिकेशन के ऑब्वियसली जो उनकी इंटरप्रिटेशन है उसको जो है एक सॉर्ट ऑफ रेजिस्टेंस है, इम्पेडिमेंट है बाकी फैक्शंस से. अब वो क्या है, आप उसको पावर डायनामिक्स में भी देख सकते हैं. ऑब्वियसली जिसकी इंटरप्रिटेशन होगी इज द वन हु एक्चुअली वुड सॉर्ट ऑफ होल्ड द पावर टू ऑल ऑफ दैट.
सेकेंडली उसमें कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो ऑब्वियसली एक ग्लोबल पैलेटेबिलिटी के लिए जो है वो इस्तेमाल होते हैं, जिसमें वुमेन्स एजुकेशन, ह्यूमन राइट्स, राइट टू लाइफ, इस किस्म की चीजें जो ऑब्वियसली एक ग्लोबल डेमोक्रेटिक सेटअप में जो है हम जो जानते हैं, या किसी मुल्क के अंदर भी एक नैरेटिव है ग्लोबली कि ये चीजें जो है वो होनी चाहिए। अफगान तालिबान कंदाहार पार्ट एक्चुअली डजंट लुक एट इट दैट वे, एंड यू विल सी सेवरल सर्मन्स कमिंग इन फ्रॉम कंदाहार व्हिच सेज कि अगर कोई पैसे नहीं देता तो ना दे, और हमने पहले भी कुर्बानी दी है, आगे भी कुर्बानी देते रहेंगे। और वुमेन्स एजुकेशन जो हमें बात कर रहे हैं या ह्यूमन राइट्स की बात कर रहे हैं, तो वो फलस्तीन और इसराइल के केस को जो है वो क्यों नहीं देखते? आई मीन ये स्टेटमेंट्स जो है वो आती रहती हैं। जो बाकी दो ग्रुप्स हैं विच इंक्लूड काबुल एंड होस्ट व्हिच इज हकानीज एंड ब्रदर ग्रुप, उसके अंदर एक सेंस है कि अपनी ग्लोबल डिप्लोमेसी और लेजिटिमेसी बरकरार रखने के लिए इन चीज़ों का कुछ ना कुछ जो है वो इदराक भी होना चाहिए और इम्प्लीमेंटेशन भी होनी चाहिए। तो जो इख्तिलाफ है, अगर मैं उसके लिए एक टेक्निकल जो है वो मज़हबी टर्म जो है वो इस्तेमाल करूँ, तो वो फ़रोई मसाइल के अंदर जो है वो या नहीं है, उसकी इंटरप्रिटेशनल वैल्यू जो है वो अलग है। और वो अलहदा इसलिए है बिकॉज़ ईच ऑफ देम एक्चुअली लुक्स एट द फ्यूचर। अब जो यूरोपियन और अमेरिकन बैक्ड इदारे हैं, they try to portray Sirajuddin Haqqani as a replacement for Kandahar or somebody who is enlighteningly moderate in terms of that the world can work with. Yeah. But then again, these decisions have a lot of political influence on it in terms of what the larger superpowers also want. Do they want him as a replacement? तो मैं अभी जो सिचुएशन है उसके अंदर, तो आई कैन टेल यू कि there's been a shut up call from the supreme leader to say कि if anything happens and this emirate starts sort of cracking, वो सारा इल्जाम हिस्ट्री का आप लोगों के ऊपर आएगा। So they've sort of backed off कि हम ये इल्जाम तो अपने ऊपर नहीं ले सकते। Who backed off? Sirajuddin Haqqani group or the other groups? All of them, all of them. All of them. So you don't hear much from them in recent times. Secondly, उन्होंने जो सिक्योरिटी apparatus और गवर्नेंस लेवल पर जो लोग अब बैठाए हैं ताकि वो सारे डिसीजंस जो मिनिस्ट्रीज शायद किसी और की हैं, लेकिन जो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटीज उनके ऊपर चेक एंड बैलेंस के लिए लगाए हैं, वो सारे अपने लोग बैठाए हैं। So technically there is no freedom for them to make those decisions as well. So and I don't think कि इसका कोई कम नियर फ्यूचर के अंदर जो है कोई सोल्यूशन भी है। ये निज़ाम ऐसा ही जो है वो चलता रहेगा till actually one day somebody replaces him, या there is a major understanding. I'm not very hopeful that this will change. मेरे ख्याल में जो अफ़गान तालिबान हैं, slowly and gradually they'll move back to what they were in the 90s. Because if they don't, तो जो मेजॉरिटी की जो सोच है, वो तो वही है कि हमने इसी के लिए जिहाद किया था, इसी सिस्टम को जो है वो रखने के लिए जो है हमने कुर्बानियाँ दी हैं। तो उससे इन्हिराफ जो है व्हिच मीन्स कि आप ये पूरी मूवमेंट ब्रेक कर रहे हैं। दैट्स द फर्स्ट पार्ट। सेकंडली जो उसमें एक बड़ा प्रॉब्लम है और जो मैं आपको आइडियोलॉजिकल फ्रंटियर्स की जो है वो बात कर रहा था, वो ये है कि अगर ये टूटने लग जाते हैं और वो उसमें आइडियोलॉजिकल गैप्स आ जाते हैं, तो उसकी ऑपोज़िशन यही है कि वो फिर जाकर आईएसकेबी के साथ मिलेंगे। जी, जी, एंड सो दे कांट अफोर्ड दैट एज़ वेल। राइट। सो ये बहुत इंटरेस्टिंग होता कि अगर हम इसको विजुअली डिस्प्ले कर सकें कि जब आईएसकेपी का प्रोपेगेंडा आता है अफगान तालिबान के खिलाफ, तो उसके बरक्स जो है आप देखते हैं सुप्रीम लीडर की तरफ से एक कमांड भी आ जाता है कि इस चीज को बंद कर दें, इस चीज को कर दें, इस चीज को कर दें। इट्स लाइक टू एंड फ्रो सॉर्ट ऑफ अ मूवमेंट बिटवीन, और ये आइडियोलॉजिकल फ्रंटियर्स पर है। सो जो आप कह रहे हैं उसमें सदाकत तो है, लेकिन ये कॉन्फ्रंटेशन कभी भी उस लेवल तक नहीं जाएगी जो हम लोगों की लाइक सोच है या तवक्को है एक मॉडर्न डेमोक्रेसी के अंदर, कि शायद पार्लियामेंट टूट जाएगी या सदर जो है वो वीटो कर देगा या थिंग्स लाइक दैट, उस दर्जे तक नहीं जाएगी। बिकॉज इसमें सिर्फ यू लुक एट इट फ्रॉम द तालिबान पर्सपेक्टिव, उसमें सिर्फ दुनिया का ब्लेम नहीं है, बल्कि आपकी आखिरत भी गई और हिस्ट्री इज गोइंग टू रिमेंबर यू फॉर दैट Yeah, एज वेल। सो yeah, नोबडी गोइंग टू टेक दैट ब्लेम ऑन देम, यू नो। तो ये निजाम ऐसा ही चलता रहेगा टिल वन डे, आई मीन समथिंग ग्लोबली चेंज जो है वो आ जाए एंड थिंग्स विल चेंज। फॉर नाउ आई डोंट थिंक दैट देयर इज गोइंग टू बी एनीथिंग दैट्स गोना चेंज। ऑलराइट। अच्छा तो ये बताएँ कि हमने अभी आपने इतनी सारी बातें कर दी कि उसमें इतने सारे मेरे क्वेश्चन आ गए, अनफॉर्चुनेटली आई डिडन्ट टेक देम डाउन। दोबारा आएँगे तो मैं पूछ लूँगा आपसे। ये बताएँ कि बिफोर वी मूव ऑन टू बीएलए एंड आई एम सेटिंग द स्टेज ताकि मेरी ऑडियंस समझ पाए, अंडरस्टैंड व्हाट द केटल इज़, ओके? यू नीड टू नो ऑल द पावर प्लेयर्स, यू नीड टू नो कि क्या है और क्या नहीं है। क्योंकि एक एब्सोल्युटली। सवाल देखिए मुझे अभी याद आ गया। अफ़गान तालिबान के जितने भी सपोर्टर्स या प्रोपेगेंडिस्ट हैं ऑन एक्स, अक्सर ये कहते हैं कि ये जो fissures है between ISKP and Afghan Taliban is something that Pakistani intelligence can take advantage of.
There's not. I won't discredit that because at the end of the day, we have to also play our game, or at least our हमारे जो करते जाते हैं उन्होंने तो कुछ करना है। तो ये अक्सर चार्ज आता है कि यार अफगानिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए आईएसआई वाले जो हैं वो आईएसकेपी के कुछ एलिमेंट्स को सपोर्ट करते हैं ताकि आगे से तालिबान पर प्रेशर किया जाए, अफगान तालिबान वाले को प्रेशर किया जाए और जब ये हो जाए तो वो अपने काम करवा लेते हैं वहां से। सो व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट? इस बात की कितनी सदाकत है? देखिए, ये जो फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर जो शुरू है, वो उसने सिर्फ वो पाकिस्तान के अंदर नहीं, वो अफगानिस्तान के अंदर भी है। जी। तो मैं जो है पर्सनली, बिकॉज अफगान तालिबान की लीडरशिप को हम जानते हैं, और जब भी उनसे मुलाकात होती है तो वो कहते हैं कि सोशल मीडिया ने सारा काम खराब किया। ठीक है, ठीक है। दैट्स गुड टू नो, So, गुड टू नो। so they also say the same thing. लेकिन जिस तरह हर मुल्क के पास जो है अपने प्रोपेगेंडिस्ट होते हैं, उन्होंने, क्योंकि वहां से एक बात आती है तो यहाँ से जवाब देना जरूरी है, यहाँ से बात होती है तो वहां से भी जवाब देना जरूरी है। तो आई डोंट थिंक कि वो जो सोशल मीडिया की जो जंग है वो सिर्फ सोशल मीडिया तक ही है। लेकिन उसके इन्फ्लुएंस ऑब्वियसली रिलेशनशिप पे जो है वो आता है। And this has been a consistent point of concern for some of the leadership from the Taliban as well as from Pakistan as well. So everybody has their own job to do. सबने रोटी खानी है, तो सब अपना अपना काम करेंगे। लेकिन आई डोंट थिंक कि उसको उस लेवल तक जो है वो सीरियस लेना चाहिए, जिसकी पॉलिसी लेवल इम्प्लीकेशंस जो है वो हो। वो सोशल मीडिया अकाउंट से कम जो है वो पॉलिसी लेवल इम्प्लीकेशंस जो है वो नहीं आती। हाँ, ये ज़रूर लगता है कि दोनों ममालिक जो है वो जंग में जो है वो 24 घंटे जो है लगे होते हैं, बल्कि कई बार ऐसे इंसिडेंट्स जो है वो आ जाते हैं, कि जिसमें हम देखते हैं कि वो पाकिस्तानी जो स्टेट स्पॉन्सर्ड मीडिया अकाउंट से वहाँ से जो है वो लगा, हम ग्राउंड चेक करते हैं, कुछ भी नहीं होता। इन सिमिलर फैशन अफ़गानिस्तान की तरफ से उनकी कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं जो बातें करते रहते हैं, एंड यू चेक देयर इज़ लिटरली नथिंग हैपनिंग ऑन ग्राउंड, सो वो सारी जंग सोशल मीडिया पे वो चलती रहती है। जो आईएसकेपी की बात है, I think the Afghan Taliban are very clear that, uh, यहाँ पर, uh, you know, it's a threat for both countries. Again, unfortunately, there is a segment of the Afghan Taliban. आप तो कह रहे हैं कि सिर्फ सोशल मीडिया की हद तक है, लेकिन they actually believe कि पाकिस्तान के अंदर से जो है इसके ऑपरेट करती है। हम्म। And I can tell you there have been multiple levels of assurances from the Pakistani side to tell them कि that is not true. अगर मैं आपको उसकी एक स्निपेट जो है वो बता सकूं इन टर्म्स ऑफ की जो ओपन सोर्स है, जो बलूचिस्तान के अंदर हालिया कार्रवाई हुई जिसमें शरीफुल्लाह के ऊपर जो है वो बहस छिड़ गई जी। कि ये था कि नहीं था और पता नहीं वो हाँ, बंदा सामान था। का क्या था वो? एक तो वो इंटेलिजेंस अमरीकियों ने प्रोवाइड की, तो अगर वो उसको मानते थे कि ये था तो उनमें वो खुश हैं, उसमें एग्ज़ैक्टली। किसी को कोई काम जो है वो नहीं। लेकिन सेकेंडली ही वाज नॉट अलोन, उसके साथ तकरीबन कोई 48 और लोग भी जो है वो पकड़े गए, वो पूरा एक नेटवर्क था। जी। एंड देयर वर मोर देन लाइक 21 कंट्रीज जिनसे इंटेलिजेंस जो है वो शेयरिंग पाकिस्तान ने की, जिसके बाद ये लोग जो है वो पकड़े गए। और कुछ लोग और ममालिक के अंदर अटैक्स में इन्वॉल्व थे, तो उनको उन ममालिक में एक्स्ट्राडाइट कर दिया गया ताकि वहां पे उनकी इंटरोगेशन वगैरह हो सके। लेकिन द ओनली कंट्री हु एक्चुअली डिड नॉट कोऑपरेट वाज अफगानिस्तान अच्छा। in this entire thing. And that's very unfortunate because वो खुद भी victims हैं इन सारी चीजों के। जी। जी। लेकिन then again के अगर एज एन एनालिस्ट में इसको देखूं तो इस रिलेशनशिप के सारनेस से जो सबसे ज्यादा फायदा है वो भी आईएसकेपी को है, क्योंकि हम उनके वो अकाउंट्स वगैरह मॉनिटर करते रहते हैं, तो वो बड़ी खुशी बनाते हैं कि किया हमने इल्जाम, ये दोनों एक दूसरे पर जो है वो लगा रहे हाँ, हैं। हाँ। So for them, they actually will thrive in more anarchy, और अगर ये रिलेशनशिप और भी डिस्टॉर्टेड होता जाता है और भी इसमें प्रॉब्लम्स आते रहेंगे, तो अल्टीमेट बेनिफिट जो है वो एसकेपी is saying that one last thing on this is के after almost I think 16 months 14 months 16 months के बाद पाकिस्तान has finally like opened the door in terms of negotiations with the Afghan Taliban, and this time with Kandahar as well. तो 15 तारीख तक जो है दे बिलीव के जो जॉइंट कोऑर्डिनेशन कमीशन है जिसकी आखिरी मीटिंग जो है वो जनवरी में हुई थी इन 2024, वो वापस जो है वो आएगी। एंड जेसीसी, जस्ट फॉर योर ऑडियंस, इज बेसिकली द बॉडी जो बॉर्डर के ऊपर जो इश्यूज हैं कि हम देखते हैं कि बार बार जो है वो फायरिंग होती है, वो कहते हैं हमारा जी, हिस्सा है। जी। बेसिकली वो जेसीसी का मैंडेट है कि उसमें थ्रू डिस्कशन इसका रेजोल्यूशन जो है वो निकाला जाए। Yeah, सो देयर इज एक्चुअली अ स्टेप फॉरवर्ड इन दैट। yeah. That's very encouraging to see कि इस सारा propaganda mostly online है और Pakistani and Afghan stakeholders are pretty much trying to work things out and move forward. And मैं अक्सर ये लोगों को कहता हूँ कि जिस तरह तुर्की की जो लीड है, तुर्की की जो लीड चल रही है आजकल in their part of the world. Again, I don't want to expand the scope of this discussion, so I'll keep that point aside for now. Um,
ये बताएं कि एक एस्पेक्ट जो मैंने अभी तक से टच नहीं किया इज द नॉन काइनेटिक पार्ट ऑफ दिस होल इशू। अभी रिसेंटली मैंने एटलीस्ट अपने साइड से ये देखा कि पाकिस्तानी स्टेट इसको प्रॉपर्ली हैंडल कर दिया है, ठीक है। काइनेटिकली तो आपको रिस्पॉन्सेस मिलता है, उन्होंने ये वो मसूद बेस के ऊपर भी काफी बड़ा एक एक्शन हुआ है बिफोर दे कुड इवन डू एनीथिंग दे काइंड ऑफ नेगेटेड द होल थिंग। लेकिन अभी नूर वली मसूद साहब का एक स्पीच आई थी जो उन्होंने उर्दू में किया, एंड माशाल्लाह वेरी नाइसली डन। उनकी जो मीडिया टीम है वो काफी अच्छी होती जा रही है। लेकिन उन्होंने बहुत सारी बातें की थी जो आइडियोलॉजिकली has a lot of loopholes. Okay, loopholes that I can, for example, the fact that you are trying to accept at least unwittingly कि आप पाकिस्तान की geographical borders को आप मानते हैं। Second thing, जब मैंने देखी जो एक loophole था in his argument was he produced this fatwa of 50 scholars or such 50 or 200 scholars, इतना मुझे याद नहीं आ रहा, of Pakistani scholars who had called for कि यार पाकिस्तान की स्टेट को अपोज करना है, it's not it's allowed. Obviously, putting aside the other फतावा of Islam वाली हायरार्की चलती है ये फतावा स्कूल में कि जो हायर अथॉरिटीज होती हैं उनकी मानी जाती है। नीचे नीचे वाले जितने भी शोर शराबा करते रहे वो 50 100 फतवे साइन कर ले, लेकिन जो ऊपर का अथॉरिटी होता है ही एक्चुअली हैज द फाइनल अथॉरिटी। सो अब इस तरीके से हम देखते हैं हमारे जितने भी सीनियर देवबंदी उलमा है, they actually are against खुरूज against the state। तो बहुत सारी ऐसी लूपहोल्स थी। अभी तक से मैंने नहीं देखा कि नूर वली मसूद को कोई कि उस स्पीच का कोई रिस्पॉन्स आया है। तो what do you have to say about that? Should we be investing more into kind of unpacking their arguments and showing them कि यार ये आपके argument में ये मसाइल है? How much of time do you have? Because this requires a very lengthy answer in terms क्योंकि ये belief systems से जो है वो related है ये answer. जी। But I'll try to wrap it up in a few words. वो Have as मौलाना much time फजल as you have, so don't worry about me. देखें जो फतवा वो जिसका वो जिक्र कर रहे हैं दैट इज आफ्टर द वाना ऑपरेशन 2004 के बाद। Sure. अ, जो जो वो बता रहे हैं जिसको रेफरेंस वो कर रहे हैं कि ये 200 उलमा का जो है वो फतवा है। उसके बाद पाकिस्तान ने फिर पैगाम पाकिस्तान के नाम पर ऑलमोस्ट 600 उलमा इकट्ठे किए। बल्कि मोर इंटरेस्टिंगली आप कह रहे हैं जवाब उसका नहीं आया। आई थिंक उसका जवाब स्टेट ने इस तरीके से जो है वो दिया कि जो पैलेस्टीनियंस के लिए जो कॉन्फ्रेंस थी इस्लामाबाद में व्हिच वाज यस्टरडे आई थिंक यस्टरडे या डे बिफोर यस्टरडे आप उसकी 3 पेज जो है वो कॉपी पढ़ लें और उसमें आई मीन एग्ज़ैक्ट अल्फ़ाज़ तो मुझे याद नहीं है व्हाट दे आर ट्राइंग टू से जिसमें देवबंद के उलमा भी हैं और बाकी सारे उलमा भी हैं और जो बेसिकली जेयूआईएफ ने होस्ट किया है। नाउ जेयूआईएफ इज़ बेसिकली द पॉलिटिकल पार्ट ऑफ द देवबंद। तो देवबंद आफ्टर यानी जब पाकिस्तान बन रहा था तो इट सॉर्ट ऑफ वेंट इन जमीयत उलमा हिंद वेंट इन स्प्लिट इनटू 3 डिफरेंट पार्ट्स। वन Right. वाज द दर्स द दरीस पार्ट which was basically, the Madaris system. Then the second part of it was the, Jamiyat Ulema Pakistan, जो Jamiyat Ulema Hind से बन के जो है वो आई. And the third part was basically the jihadist part. So according to them, all three are relevant. The Deoband school of thought. अब relevance in terms of against the state क्या है? मुझे यूआईएफ ने बहुत clearly जो है वो कल भी वो कॉन्फ्रेंस के अंदर जो है वो बता दिया कि anybody who picks up the state arms against the state और जो मुस्लिम स्टेट हो क्योंकि जिहाद जो है वो कह रहे हैं कि वो स्टेट की तरफ से अनाउंस होगा। तो अगर स्टेट के अलावा आपकी कोई इंटरप्रिटेशन है क्योंकि वो सारे उलमा बैठे हुए हैं तो आप फिर जमी उलमा के मौक़िफ़ से जो है वो इख्तिलाफ़ करते हैं। ये जेयूआईएफ की स्टेटमेंट है। उसपे टीटीपी के ग्रुप्स के अंदर और बाकी जो जिहादिस्ट ग्रुप्स हैं उन पे काफ़ी डिबेट आज भी जो है वो शुरू थी एंड वी एक्सपेक्ट कि उस पे शायद कोई रिस्पॉन्स उनका भी जो है वो आएगा। दैट्स अ वेरी क्लियर आंसर टू नूर वली महसूद जो उनकी प्रोपेगेशन थी। द सेकंड थिंग इज़ कि जब उनकी जो है वो शहादत हुई थी जामा हक़ानिया के जो है वो हेड्स होते हैं हामिदुल हक हक़ानी सुसाइड बॉम्बिंग में, वहाँ पर भी मौलाना अब्दुर रहमान साहब ने जो है वो एक स्पीच जो है वो कंडोलेंस स्पीच की थी। Right. तो मैं उसकी सिर्फ 2 लाइनें जो है वो दोहराऊँगा, व्हिच इज़ बेसिकली कि उन्होंने कहा कि मैं अपने उस्ताद के कातिलों को भी यू नो मैं अपने उस्ताद को भी शहीद जो है Highly, वो उनको भी वो शहीद कहूँगा और लेकिन ये तो नहीं हो सकता कि उसके कातिलों को भी जो है वो शहीद बोलूँ। right. Like this was a sort of a indirect reference उस वक्त to say कि what you are doing is actually not correct and we cannot endorse what you guys are doing. ये उनका जो है वो एक रिप्लाई था। लेकिन शहाब I personally feel कि चूंकि नॉन काइनेटिक पार्ट जो ये सारे जो है
मकतबा फ़िक्र से रिलेटेड है। उसमें एक बहुत बेसिक एलिमेंट ये भी है कि स्टेट ने उसको कोई जो है लाइक उसको प्रायोरिटी पे नहीं रखा। तो आप कंटिन्यूअस एक फायर फाइटिंग में गए हैं जिसमें आप समझते हैं कि कुछ लोग असलहा उठाएँगे और फिर इनके खिलाफ जाएँगे और एक्शन करेंगे एंड देन वी सॉर्ट ऑफ गेट रिड ऑफ देम और फिर 5-6 साल बाद वो दोबारा उठ के आ जाते हैं। बिकॉज़ जो उसकी इंडोक्ट्रिनेशन है, उसकी आइडियोलॉजी है, उसको काउंटर करने के लिए आपने कुछ भी जो है वो पैदा नहीं किया। या जो उस सब्जेक्ट की जो है वो अंडरस्टैंडिंग है, वो आपने आम नहीं की। बल्कि मैं आपको ये भी बता दूँ कि आपका जो पॉडकास्ट है, आई एम श्योर यू हैव अ लॉट ऑफ लिसनर्स, लेकिन अगर आप इसको कोई ऐसा टाइटल दे दें जो इस सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, तो पाकिस्तान के अंदर ये एक टैबू सब्जेक्ट है। हुँ, पीपल आर स्केर्ड ऑफ इंडल्जिंग इन इट राइट, बिकॉज़ हालाँकि 20 साल गुज़र गए, लोग इस पे बात नहीं करना चाहते, यू नो? जी, तो जो उसकी क्यूरियोसिटी है और इससे जो कॉम्प्लेक्स जो सवाल निकलते हैं एंड आई मीट अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस जो आते हैं रैंडमली फ़ोन कर देते हैं, वेबसाइट से ईमेल उठा के ईमेल कर देते हैं कि हमारे ये सवाल हैं एंड आई एम थिंकिंग कि जो इनके सवाल हैं क्योंकि स्टेट कॉम्प्लेक्स आंसर्स नहीं कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस के आंसर्स नहीं दे सकता। और ना देना चाह रहा है। आई डोंट नो कि वो क्यों नहीं देना चाह रहा बट इट डज़न्ट वांट टू इंडल्ज इंटो कॉम्प्लेक्स आंसर्स। हुँ, अब उनके जो आंसर्स हैं, जो मेजॉरिटी यूथ के हैं, वो आंसर्स नॉन स्टेट एक्टर्स दे रहे हैं। एग्ज़ैक्टली, सो लाइक स्टेट ने जो इन्वेस्टमेंट जो चाहिए कि जो कॉम्प्लेक्स आंसर्स हैं, उनको ब्रेक डाउन करके जो उनके जवाब देने चाहिए, उस किस्म का स्टेट लेवल पे तो हम कोई काम कंसोलिडेटेड एफर्ट है, मैं ये नहीं कह रहा कि एफर्ट नहीं है, कंसोलिडेटेड एफर्ट मुझे नज़र नहीं आती कि जहाँ पर कॉलेजेस के अंदर जाकर या कोई ऐसा सब्जेक्ट मुतारफ कराया जाए कि भाई ये अंडरस्टैंडिंग है, दिस इज़ नॉट व्हाट यू हियर फ्रॉम हियर एंड देयर इज़ नॉट एक्चुअली करेक्ट। सो यस। जब तक इसको प्रायोरिटी बनाकर जो है वो नहीं पेश किया जाएगा, मुझे नहीं लगता कि ये सोच जो है वो कभी खत्म नहीं, आई एम ग्लैड दैट आप ये मेरे आई हैव दिस फ्रस्ट्रेशन मायसेल्फ एंड द फैक्ट दैट यू आल्सो हैव द कंसर्न टेल्स मी कि यार देयर इज़ दैट रियलाइजेशन कि यार मोर नीड्स टू बी डन। क्योंकि हम लोग यही देखते हैं, देखिए हमारे ये होता है कि अगर आप राइट सोर्स से अगर आप इन्फॉर्मेशन नहीं मिली ना आपको, you people have these questions, they will go look for them for answers, and if they find from the wrong sources then you're losing space, आप स्पेस छोड़ दिए वो खुली और कोई भी इसको इसके खिलाफ फिल कर आई देगा। एग्री 100%। जी। आई टोटली एग्री विद दैट। So, I mean, both, there's some, people look at it, हमारे politicians तो मैं बिल्कुल नहीं देखता। No one, मुझे एक उम्मीद दिख रही है थोड़ी बहुत, and that's why he was a breath of fresh air। हमारे अनवर हक काकड़ साहब जो आए थे, uh, at least on the Balochistan issue, and nice segue to Balochistan, I guess, where he was, he took on the students, एक student वहाँ बैठा हुआ था, and he actually took him on, and he started giving him responses from the state's perspective. Yet, हमारे as a state, हमारी ये limitations है, ये constraints है, this is how we operate. So what you're doing is you don't even, and I'm sure when he goes back and thinks about this, he'll realize कि मैंने कितनी सारी चीज़ों को नज़रअंदाज किया है, और so simplify कर दिया कि यार एक issue है of rights, which is not the case. There are so many other things that you have not thought about. So, and I think we need more of Kakadiyan कि जो at the public level जो आपके public representatives हैं, वो आपको ये जवाब दे सकें, if not the state, public representative दे सकें। तो, nice segment to BLA। ये बताएं कि I'll just skip to the cut to the chase because अब हम लोग for 50 minutes हो गए हैं। लेकिन मैंने देखा है कि जब से ये जाफर एक्सप्रेस का ये हुआ वाकया, एक कंप्लीट पॉलिसी शिफ्ट हुई है जहाँ पे द बीएलए हैज़ बीन अंडर अ लॉट ऑफ प्रेशर, इलावा के जो ये आज ऑपरेशन हुआ है, जो बलोच नेशनल आर्मी है, जो भी अपने आप को कहते हैं, they killed these 8 people. I think they killed them inside Iranian territory of Balochistan, right? So, not inside Pakistan. So, what changed inside of Pakistan? जहाँ पे एकदम से उन्होंने इसको एक्शन लिया है, पीवाईसी के ऊपर भी उन्होंने इसको क्रैक डाउन किया है। What could they have done before जो अब was it because of that train incident we were like यार क्या बहुत हो गया, अब हम लोग को एक्शन लेना चाहिए। So what do you know about our policy makers and how did they come about this decision? सी आफ्टर और इसकी एक ट्रैजेक्टरी एक टाइमलाइन है। अगस्त 26 2024 के बाद हमने देखा कि जो बलूचिस्तान में अटैक्स हो रहे हैं, उसका तरीकाकार जो है वो बदलने शुरू हो गया। एक तो लार्ज स्केल अटैक्स जिसमें मल्टीपल सुसाइड बॉम्बर्स जो है वो इस्तेमाल हो रहे हैं और सिक्योरिटी इंस्टॉलेशन को अटैक कर रहे हैं। उसके बाद फिर एक सेकंड ट्रेंड शुरू हुआ जिसके अंदर कुछ लोग निकलते हैं लाइक 200-300 लोग जो जाकर एक गाँव के ऊपर, एक कस्बे के ऊपर जो है वो कब्ज़ा कर लेते हैं।
और फिर उसकी एक तीसरी जो है लाइक मिसाल जो है वो जिस तरह ऑपरेशनल निकल के आई कि कुछ लोग निकल कर मल्टीपल पॉइंट्स पर जो मेन आर्टरीज हैं, रोड्स हैं, उसके ऊपर चेक पॉइंट्स निकाल कर लोगों को आईडी कार्ड चेक के या तो गोली मार रहे हैं या फिर वो आर्टरीज चोक कर रहे हैं। और ये तीनों ऐसी मिसालें हैं कि जो पहले में जिसमें लार्ज नंबर ऑफ बॉम्बर्स हैं, वो ये सजेस्ट करती है कि आपके पास सरप्लस ह्यूमन वैल्यू है, लाइक आपके पास फाइटर्स रहते हैं। दूसरा वो ये दिखाती है कि स्टेट ये जो गाँव है, कस्बा है, उसके ऊपर कंट्रोल करने के लिए भी आपके पास इतना मैन पावर है, मतलब आपको कोई ना कोई लोकल सपोर्ट है, जिसके ज़रिए आप स्टेट की लेजिटिमेसी को चैलेंज कर रहे हैं। और तीसरा कि अगर आप रोड्स को बंद करके और ब दूसरे प्रोविंसेस के पार्टिकुलरली पंजाब के लोगों को गोलियाँ जो है वो मार रहे हैं, तो आप स्टेट की रिट को तो चैलेंज कर ही रहे हैं, लेकिन आप एक एथनिक वायलेंस की तरफ भी इस मुल्क को लेकर जाना चाह रहे हैं। और थिर्डली आप दुनिया को ये बता रहे हैं कि ये जगह हमारे कंट्रोल में है, तो जो भी पाकिस्तान के फ्लैगशिप प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे वो गवादर है, चाहे वो रेकोडिक है चाहे वो बॉर्डर पे जो है वो और है ट्रेड है, बीच में। वो आप हमसे जो है वो बात करनी पड़ेगी। नवंबर के अंदर पाकिस्तानी स्टेट ने ये सोच बनाई कि नाउ बलूचिस्तान चूंकि स्कैटर्ड पॉपुलेशन है, इट्स द लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ एरिया, स्मॉलेस्ट in terms of population. So the state needs to extend its footprint in terms of के अपनी ऑपरेशनल बेस और लेजिटिमेसी और सॉवरेनिटी को जो है वो एस्टैब्लिश किया जा सके। जब ये प्रोसेस शुरू हुआ उसके दरमियान में जो है जाफर एक्सप्रेस हुआ। तो मैं ये नहीं समझता कि जाफर एक्सप्रेस जो है वो एक रिएक्शनरी मेजर है उसके बाद जो भी हो रहा है। मैं ये समझता हूँ कि वो एक कैटलिस्ट के तौर पर जो है आया हुआ है। ओके। तो कैटल या उसको जो है वो प्रोसेस को ज़रा जो है वो तेज़ कर दिया। अम लेकिन जो बलूचिस्तान का मैं कुछ चीज़ें जो है वो लाइक वो समझता हूँ ज़रूरी है बलूचिस्तान के हवाले से बात करना, कि अगर आप ये समझते हैं कि बलूचिस्तान का प्रॉब्लम जो है वो प्योरली काउंटर टेररिज्म है, तो फिर तो ये ठीक है, आप प्योरली जाके क्रैक डाउन करें। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि बलूचिस्तान का मसला जो है वो पॉलिटिकल है, तो फिर वो पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू करें। अब उसमें मैं ये समझता हूँ कि एक सॉर्ट ऑफ खुशकिस्मती की बात क्या है कि बड़े मियाँ साहब मियाँ नवाज़ शरीफ ने जो है वो राब्ते जो है वो ही सॉर्ट ऑफ स्टेप्ड इन और उन्होंने एक पॉलिटिकल प्रोसेस जो है वो शुरू किया। इट विल टेक टाइम। अगर आज आप शुरू करते हैं तो बलूचिस्तान की जो ग्रीवियंसेस हैं या वहाँ पर जो मिसहैंडलिंग हुई है या जो वहाँ पर एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस ने जो काम किया है, इट्स गोना टेक एट लीस्ट 2 डेकेड्स ऑफ कंसिस्टेंसी कि आप उसको जो है वो पॉपुलेशन को पाकिस्तानाइज़ करें, उसको क्लियर करें, उनके जो मिथ्स हैं ज़हन के अंदर पाकिस्तान के हवाले से बिकॉज़ अ लॉट ऑफ दिस इज़ एक्चुअली आप एक साइड पर तो जो है वो मज़हब की जो है वो इंटरप्रिटेशन को जो है वो फेस कर रहे हैं, लेकिन दूसरी साइड पर आप हिस्टोरिकल नॉलेज को जो माइथोलॉजाइज़ करके जो है अपनी इंटरप्रिटेशन दी जा रही है, उसको भी जो है वो चैलेंज कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में इट्स गोना टेक टाइम, लेकिन जो इस टाइम शहाब जो ग्लोबल चेंजेस हैं और जो बलूचिस्तान के ऊपर भी कॉन्सन्ट्रेटेड हैं। मैं ये समझता हूँ कि लाइक जो बीएलए और बीएनए जैसे ग्रुप्स हैं, एट लीस्ट कुछ टाइम के लिए जो है ये सेटल हो जाएँगे, जो उसका आर्म्ड पार्ट है। Political process depends actually on how well the Pakistani establishment and the sitting government actually work together कि उस political processes को expedite करके उसका solution जो है वो निकाला जाए। एंड देन मैं ये भी समझता हूँ कि जो हमारे हमारे बलूचिस्तान चूंकि बहुत सारे लोग गए भी नहीं होंगे कि बलूचिस्तान का है क्या लाइक व्हाट इट लुक्स लाइक, लेकिन जो हमारे मोर लिबरल तबका है वो बलूचिस्तान को एक बहुत डिफरेंट पर्सपेक्टिव से जो है वो जाके जो है वो देखता है, क्योंकि ऑब्वियसली हमारे सारे नैरेटिव्स तो वही होते हैं क्योंकि गोरे ने कह दिया तो यही सच होगा। हाँ, हाँ। पाकिस्तानी चाहे वो बहुत भी चीखें मारे, बहुत भी रिसर्च पेपर्स लिख लें, लेकिन वो कहते हैं कि जी ये सब स्टैंडर्ड है, जो गोरे बात कर रहे हैं तो सबसे जो है वो ठीक बात जो है वो होगी। तो वो तो हमारा मसला है एंड दैट इज़ व्हाई अनफॉर्चुनेटली जो हमारे लेफ्टिस्ट जो पॉलिटिक्स हैं, वो ज़्यादातर इस तरफ जो है वो टिल्टेड हैं क्योंकि अ लॉट ऑफ इट इज़ एक्चुअली आई थिंक कि मिथ बस्टिंग जो है वो होनी चाहिए कि एक्चुअली हुआ क्या था। तो जो आप बात कर रहे हैं तो पब्लिक डिस्कोर्स से जो है वो मैनेज होगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि स्टेट को अपना दिल भी बड़ा करना पड़ेगा और दिमाग भी बड़ा करना पड़ेगा। जी, अगर आप बलूचिस्तान के सब्जेक्ट को टैबू बना देंगे कि इस पर भी किसी ने बात नहीं करनी, जी। तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि इसका कोई हल जो है वो निकला जा सकेगा। लोगों के ज़हन में यही हमेशा रहेगा कि जो बीएलए की जो प्रेस रिलीज़ है या बलूचिस्तान नेशनल आर्मी की प्रेस रिलीज़ है, उसमें फैक्ट्स जो है वो छुपाए गए तो फिर लोग जाएँगे। वो कह रहे हैं कि हमने सबको बचा लिया, वो 357 पैसेंजर्स को कहते हैं कि नहीं बॉडीज़ हैं और उनको जो है वो दर्जनों के हिसाब से लेकर आकर कब्रिस्तान में दफन किया जा रहा है। तो ना वो नाम बता सकें, ना उन्होंने नाम बताए, ना स्टेट ने नाम बताए। या दोनों ने नहीं एग्ज़ैक्टली। बताए, यू नो? जी।
फिर तो जो लेजिटिमेसी जो उसकी रह जाती है आर्ग्यूमेंट की, तो आपकी मेजॉरिटी पॉपुलेशन अगर उनकी बात मान रही है, तो आपके बाय डिफॉल्ट कोई लेजिटिमेसी है सच पब्लिक स्पेस के अंदर जो आपकी एक्सेप्टेबिलिटी उसकी नहीं है, तो आप ऑलरेडी उसको डैमेज कर रहे हैं। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि फैक्ट्स के थ्रू आकर जो है वो बात जो है वो करनी चाहिए और मिथ बस्टिंग होनी चाहिए। जितने आप इसको ब्लॉक करेंगे, ट्विटर ब्लॉक करेंगे, फेसबुक ब्लॉक करेंगे, कुछ भी करते रहें, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क, इट्स गोइंग टू क्रिएट मोर प्रॉब्लम्स। एब्सोल्युटली। और आपने भी बात ये की देखें कि ये लेफ्टिस्ट इस तरह की देयर इज अ राइटिस्ट एंड अ लेफ्टिस्ट बैंड ऑन प्रो बलूचिस्तान और प्रो गेले ऑड कि इस्लामिस्ट पीपल को सपोर्ट कर रहे हैं और लेफ्टिस्ट पीपल को सपोर्ट कर रहे हैं। और दिस इज ऑल हैपनिंग इन लार्जर कॉन्टेक्स्ट जहाँ पे पाकिस्तान में एक तबका है जो फौजियों के खिलाफ हो गया है, ठीक है। विदाउट टेकिंग नॉट बीइंग वेरी शार्प, बट पीटीआई का आप बोल रहे हैं, ठीक है। पीटीआई जब से पीटीआई हिस्टोरिकली हैज बीन pro army, okay? Before PTI even came into existence, ये मुशर्रफ के supporters थे, a lot of them. So they have lost uh, that तबका, जो उनको हमेशा सपोर्ट करता था। और अभी क्योंकि उनसे इकट्ठे हो गए, तो अब जो भी इनको मार रहा है बस उनके साइड चले जाते हैं, ठीक है। Add on to this the complexity of the liberal framework जो हम वेस्ट से ट्रांसपोज कर रहे हैं onto बलूचिस्तान। यार एक मेजोरिटी थी, उसने आके वो मेजोरिटी भी क्या थी, वो एक एक्सटर्नल मेजोरिटी थी जिसने आके क्रिस्टोफर कोलंबस के थ्रू वो आके यहाँ पे हावी हो गई। अपने उसने स्ट्रक्चर्स खड़े कर दिए, सब गोरे व्हाइट मेजॉरिटी, और फिर बाकी माइनॉरिटीज को उसने सिस्टमैटिकली उसको रिप्रेस किया, व्हिच इज ट्रू। लेकिन अब यही उन्होंने ट्रांसपोज करके पाकिस्तान में लिया है, जैसे कि पंजाबीज केम फ्रॉम hundreds and thousands of miles away into Punjab, and then they took over everything. अब वो सबको दबा रहे हैं, which is not exactly as if हम लोग सब वहां से हैं, we are all like वहां के ही लोग रहने वाले हैं। So गलत चीजों को गलत तरीके से ट्रांसफर करके सिंप्लीफाई करके दिखाया जा रहा है। एक सवाल मैं आपसे करना चाह रहा था कि about आप इसके लिए जवाब दे दिया ऑफ ये जो ट्रेन एक्सप्रेस था, दिस इज कैटलिस्ट नॉट नेसेसरली अ टर्निंग पॉइंट। लेकिन अब मैं देख रहा हूँ कि पाकिस्तान जो है वो रीच आउट कर रहा है टू द वेस्टर्न वर्ल्ड कि आप आके यहाँ पे, एंड आई थिंक नॉट पाकिस्तान has been reaching out, but I think the Americans are showing interest in our minerals in Balochistan. And because this is happening now, they're coming in. Um, I see a lot of propaganda dying down already because बहुत सारे जो those propagandists, they're already going quiet. So how do you think Pakistan can leverage these new develops, or can we? Is this link? Maybe someone can argue कि यार ये किया गया था ताकि पाकिस्तान को मजबूर किया जाए कि यार West को और stakes दो inside Balochistan. You're giving too much stakes to मैं China. मैं ये सवाल आपसे पूछता हूँ कि आप, क्योंकि आप भी देखते हैं, मेरे पास तो इसका जवाब नहीं है। मे बी आई थिंक डिफरेंटली ऑल्सो, कि अगर आज अमेरिका आकर जो है वो गवादर ले लेते हैं और वो फिर जो है वो रिकॉर्डिंग भी ले लेते हैं, तो फिर भी बीएलए की तरफ से यही स्टेटमेंट आएगी कि हम इनको वार्निंग दे देंगे यहाँ से जो है वो निकल जाएं, और हम इनको जो है वो टारगेट करेंगे। तो ये स्टेटमेंट आएगी कि नहीं आएगी? आई मीन आई एम आस्किंग यू दिस क्वेश्चन। देखिए, रेकोडेक की जो काम शुरू हुआ था 90s में शुरू हुआ था, ठीक है। और ये जो आजकल जो कंपनी बहुत बड़ी हिस्ट्री है उसकी कि ये जो थी पैरेंट गोल्ड इनिशियल feasibility रिपोर्ट, फिर वो फॉर व्हाटएवर रीजन दे लेफ्ट एंड देन द टर्किश कंपनी केम, फिर उनको भी निकाला गया, जिसकी वजह से पाकिस्तान को बहुत बड़ा फाइन पे करना था, लेकिन वो भी माफ करा दिया। देन दोबारा से बैरेंट गोल्ड आ गई है। बैरेंट गोल्ड इज अ Canadian company owned by people who are very well integrated in the mining industry. एक चाहे वो Congo में हो गया है, in the African countries, they're very connected and this is what they do. Okay, so पूरे इस टाइम फ्रेम में 90 से लेके आज तक, कल ही भी मैंने सिर्फ एक ही 2022 में मैंने देखा था कि एक स्टेटमेंट आया था कि यार हम शायद किसी दिन वहां पे भी कुछ करें, लेकिन बहुत ही फ्रीली बात आई थी। आई थिंक बशीर जैगली था जिसने ये स्टेटमेंट दी थी। So they've never really said anything. They're attacking Chinese specifically and not anybody else. So when the Americans come in, and there's context in this too. If मैं कनाडा में रहता हूँ, इनके सारे जितने भी बीवी बच्चे सारे इधर ही रहते हैं, कनाडा में, यूएस में, स्वीडन में। So they know कि अगर हमने यहाँ पंगा ले लिया तो हमारी फैमिली के वहाँ पे लग जाएंगे। So and that's a fact. Yeah, I totally understand and agree with you as well in terms of how the larger optics of all of this is. लेकिन ये कहना कि जाफर एक्सप्रेस के बाद जो है वो अमरीकी आ रहे हैं, तो पब्लिक डोमेन में लाइक शायद टीवी पर ये बात जो है वो, लेकिन आई नो कि ये मीटिंग्स बहुत एडवांस में जो है वो प्लान होती हैं, तो मच बिफोर दैट दिस इंटरेस्ट इन दिस मिनरल एक्चुअली शोन
ओके। लेकिन ऑब्वियसली उसके every country requires people that can actually come and invest, and Pakistan at this time is a growing economy. I mean, so it या has much potential and people actually view it that way. असल में अ, पाकिस्तानियों का सबसे बड़ा मसला ये है, और ये मसला मेरे साथ भी किसी ज़माने में था, कि हम अपने आप को किसी और के लेंस से देखते हैं, तो हमेशा इंफीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स में रहते हैं कि हुँ, ये जो कह रहे हैं, ये सच है कि झूठ है, हमारे बारे में। हुँ, पीपल एक्चुअली डोंट थिंक कि हमारे पास वसाइल हैं, हमारे पास मिनरल्स हैं। दे एक्चुअली थिंक कि लोग आ रहे हैं हम पे कब्ज़ा करने के लिए। लेकिन इसमें भी एस्टेब्लिशमेंट में का कसूर है, बिकॉज़ दे एक्चुअली फ्रेम्ड दिस एंटायर नैरेटिव। नाउ दे वांट टू ब्रेक थ्रू इट आल्सो। Like, and the fact is that Pakistan is a growing economy. I mean, it just requires leadership and support. I mean, how to grow. तो ऐसा भी तो नहीं है कि all is lost. I mean, मैं बहुत सारे लोगों से जो है वो बात करता हूँ दिन में, और वो कहते हैं यार आप हमसे जब भी कहते हैं तो कोई पॉजिटिविटी वाली बात नहीं करते हैं। तो आई टेल देम आपके सवाल ही जो है वो मेरे सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं, तो मैं तो बड़ा खुश आदमी हूँ, मैं तो कोई खफा आदमी नहीं हूँ कि जो कमरे में बैठ के छुप के सारा दिन जो है वो वक्त गुजारता है। ये मेरा सब्जेक्ट है, आई डील इट एज़ अ सब्जेक्ट, क्योंकि मेरी एक्सपर्टीज़ है एक चीज़ पर, सो दैट्स व्हाई आई एम गिविंग यू दैट। लेकिन टेररिज्म और मिलिटेंसी इस सब्जेक्ट को खोल देना चाहिए। आई दैट्स गुड। रियली बिलीव दैट, फर्मली बिलीव दैट। आप इसको पढ़ाएँ कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल पर। अ, टेल पीपल व्हाट हिस्ट्री वाज़, व्हाट्स हैपेंड इन द लास्ट 20 इयर्स, व्हाट्स हैपेंड। और एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ फेलियर डज़ नॉट एक्चुअली मीन दैट you've lost everything। तो या आप बताएँ कि स्टेट से कहाँ-कहाँ का जो है वो गलती जो है वो हुई है, और आप दोबारा आप इसको आम करेंगे इस नॉलेज को, तो लोगों को भरोसा भी होगा कि आप सच भी कह रहे हैं, और अगली बार जब आप वो गलती दानिस्ता या नादानिस्ता तौर पर करने के लिए जा रहे हैं, तो पब्लिक जो है वो आपको रोकेगी कि यार ये ना करें, क्योंकि हम पहले ये गलती कर चुके हैं। But it's just about opening up the society a little more, and I think the Pakistani establishment should realize it now that इसको बंद करने से, stringent measures adopt करने से ये मसाइल हल नहीं होंगे। जी, जी और देखिए इसमें तो कोई शक नहीं है कि इस वक़्त बलूचिस्तान एंड इवन पार्ट्स ऑफ एपी आर द engines of our growth. यहाँ पे बहुत एक्टिविटी होने वाली है। I mean Reko alone anywhere between 300 billion to 1 trillion लोग कहते हैं उसकी potential है। I'm talking about lower and higher ranges. And that's just one project. If you look at the agriculture project to start over inside Balochistan, that will like increase our agri output by almost 5 times, if not more folds. Okay? So there's a lot that Pakistan can do in the next 10, 15 years that would really kickstart Pakistan's growth story. तो ये सारा जितने भी इंसर्जेंसीज़ हो रही है, इसके मैं इसको टैकल करना चाह रहा हूँ कि मैं यहाँ बाहर रहता हूँ ना, तो स्पेशली बाहर हमारे यहाँ अ लॉट ऑफ पीपल आर प्रो पीटीआई, ठीक है? तो अभी भी माफ़ करें। तो उनको जो है लगता है कि यार हर एवरीथिंग इज़ डूम एंड ग्लूम, खान साहब जेल में है तो बस पाकिस्तान अब टूटने वाला है। और देखो वहाँ पे इतनी सारी इंसर्जेंसी हो रही है। मैं तो ये कहता हूँ ना कि यार इंसर्जेंसी भी एक वजह से हो रही है, पोटेंशियल है इसलिए हो रही है। वरना तो इस किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वहाँ पे वो लोग अपनी लाशें गिराएँ। आई अगेन सेड साहब कि ये पॉलिटिक्स को इस लेवल में ले जाने में भी एस्टैब्लिशमेंट, पाकिस्तानी जी, एस्टैब्लिशमेंट बिल्कुल, का, बिल्कुल। आई मीन दे कैन नॉट बी एक्सोनरेटेड फ्रॉम दिस, कि जिस लेवल को ये पॉलिटिक्स को ले गए। अगर खान साहब जो है वो कल बाहर आ जाते हैं, यू थिंक दैट ही इज गोइंग टू टेक पीपल एंड स्टार्ट मार्चिंग टुवर्ड्स द जीएचक्यू और उस पर बमबारी करने लगेंगे? ही लुक एट द पॉलिटिकल प्रोसेस बिकॉज़ ही वांट्स टू लीड इट। ही इज नॉट गोइंग टू गो एंड डिस्ट्रॉय एवरीथिंग, दैट्स नॉट पॉसिबल। लाइक आप वो जब वो गवर्नमेंट में थे भी, तो वो अपने लोगों की वजह से जो है वो उसको अपने जो पार्टी के लोग थे उनको क्रिटिसाइज जो है वो करते थे कि यार ये तो कुछ और कर रहे हैं, हमें क्या कि जो है कुछ और उन्होंने बताया था। हुँ, आई डोंट थिंक कि कोई भी पॉलिटिकल लीडर जो है वो इतना जो है वो ब्लंडर करेगा कि अपनी फौज को जाकर जो है उनके मुखालिफ जो है वो खड़ा हो जाएगा। आई डोंट थिंक दैट इज पॉसिबल। लेकिन जो इतना क्राउड हम पे चार्ज किया है इसके साथ करेंगे क्या? मेरे ख्याल में इनके लिए मौके जो है वो प्रोवाइड किए जाएं, एंड देयर इज इट्स अबाउट टाइम कि कोई सेंस ऑफ पॉजिटिविटी जो है वो दिखाई जाए। और जिस तरह हम बलूचिस्तान में जो है वो कह रहे हैं कि आवाज़ों को बंद ना करें, और केपी में भी कह रहे हैं कि आप इसको जो है सब्जेक्ट को मेनस्ट्रीम कर दें, लोगों को समझने दें कि है क्या। ये साइमल्टेनियसली जो पॉलिटिकल रेलम है, एंड इट्स पॉजिटिविटी, क्योंकि अब तो उनकी सेंट्रल लीडरशिप की तरफ से जो है वो स्टेटमेंट आई है कि कोई एंटी एस्टैब्लिशमेंट बातें जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो ना करें, और बाज़ाब्ता तौर पर कमिटी जो है वो बना दी गई है ताकि वो जो है वो बातचीत जो है वो शुरू करें। तो जी, ये पॉजिटिव साइंस है, आई थिंक, कि एक सोसाइटी इसी तरह से एब्सोल्युटली, वो आगे जाती है। जी। Yeah. बस एक लास्ट चीज़ बिफोर आई कम to Sure. the regional context. I hope you have some time left. Um, बशीर ज़ैद की भी हमने बात सुनी थी कि उनको उड़ाया गया है. So right after Jaffa Express, I think within 48 hours, I heard that he's been taken out. It was not confirmed, and it's still not been confirmed till today. I Until I can found out confirm to कि you that was fake news, and I think जो original source जो हम ढूंढ रहे थे, from where it actually came was from an Indian TV channel, which I जी, would never take as authentic anything. लेकिन yeah,
कोई इत्तला जो है वो नहीं है कि अनफॉर्चुनेटली बलूचिस्तान की बहुत सारी जो न्यूज़ ब्रेक्स आती है ना फ्रॉम इंडिया ही आती है। जैसे जब ये जाफर एक्सप्रेस को जब हाईजैक किया गया था, सबसे पहले ब्रेकिंग न्यूज़ वहाँ पे आई कि वो जो बहुत बलूच हैं, उनको भी उन्होंने टीवी पे ले लिया एकदम इमीडिएटली। सो आई मीन दैट वाज़ फनी उसको मास्क पहनाकर जो है वो टीवी पास पे में लाके इट वाज़ नॉट अबाउट एट द एंड ऑफ द डे। सो यही चीज़ है ना कि देखिए, ये सारा कुछ भी इससे कंट्रोल किया जा रहा है। नाउ हाउ मच आई डोंट नो इफ यू टॉक टू आवर सिक्योरिटी सेल्स इफ यू आर अलाउड टू गिव डाइवर्स दिस इन्फॉर्मेशन, बट हाउ मच हैंडल डू दे हैव ऑफ फॉर एग्जांपल दिस बहाउट बलोच guy, ये किधर बैठा है? ये क्या स्वीडन में है या इंडिया में है? How does he have such easy and direct access to India Today, for example? How the hell do they have his WhatsApp to कि इसको आई मुझे तो अपने सर की बात से बात करने पड़े आपका कॉन्टैक्ट निकालने के लिए। इन्होंने इसको यूँ निकाल लिया। So what do they tell you about these? How much do they know about these guys कि कहाँ-कहाँ बैठे हैं वे सारे? Balochistan's Indian connection is not a hidden part of anything. Yeah. ये कोई छुपी हुई बात जो है नहीं है. And obviously these guys are living in different countries altogether. Sweden has been always one of the most favorite destinations for most of them for Mm. seeking asylum as well. Bahut Baloch is obviously, I mean, one of the characters amongst many others. But the issue with Balochistan is that the common man has less access to the state and it has more access to the non-state. यू नो स्टेट जिस तरह अपने आप को इम्पोज करना चाहिए उस तरह अपने आप को इम्पोज नहीं कर रही। उनके लिए स्टेट का मतलब जो है वो सिर्फ पावर रिलेटेड है। अम, और जो बलूचिस्तान के अंदर जो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस है तो ऑब्वियसली इंडिया का नाम आई मीन खुलेआम जो है वो कहना चाहिए कि उसमें इंडियन इन्फ्लुएंस जो है वो जरूर इन्वॉल्व है। इसमें कोई दो राय नहीं है। जाफर एक्सप्रेस की कवरेज इज जस्ट एन इंडिकेशन टुवर्ड्स ऑल ऑफ इट टू शो द फेलियर ऑफ अ पाकिस्तानी स्टेट इन टर्म्स ऑफ हैंडलिंग इट एंड हालांकि वो हैंडल जिस तरीके से जो है वो किया गया वो काफी प्रोफेशनल था। एटलीस्ट ऑन द काइनेटिक उसकी ऑप्टिक साइड शायद इतने प्रोफेशनल नहीं थे लेकिन काइनेटिक साइड पर जो है वो काफी प्रोफेशनल था उसकी हैंडलिंग जो थी। आई फर्मली बिलीव दैट। लेकिन जो आप बात कर रहे हैं कि जो इजी एक्सेस है इन टर्म्स ऑफ तो ये अगर आप मुझे जो है वो ढूंढ रहे हैं और आपका पहले मेरे साथ कोई ताल्लुक नहीं है तो आपको बहुत मुश्किल होगी मुझे ढूंढने में। जी। लेकिन अगर हम दूसरे के साथ गप्पे-शप्पे लगाते रहे और फिर शायद 1 महीने 2 के लिए कहीं चला गया तो आपको पता है व्हिच पीपल टू आस्क on where I should actually be. I think that Exactly. answer is sufficient enough to sort of tell you that Yeah. how the things are sort of built, you know. Yeah. लेकिन The train line is so amazing कि वो ट्रेन हाईजैक होती है और within an hour I think they get this guy and then in 2 hours he's on the station giving an interview. एक बात जो आपने कही ना कि हमने जो स्पेस छोड़ दी है जहाँ पे स्टेट एक at least on the non-kinetic side एक response central response नहीं दे रहा है. I'll give you an example of this Bahut Baloch person. Okay, इसकी जो identity है was revealed. Now, I don't know how true this is by someone with the handle of I think Dustare Balochistan or something like that. I don't remember exactly. I'll look it up. it's the Pakistani establishment has details of literally everyone and they put it up on the internet. That जी, actually doesn't जी. mean anything. It doesn't translate into anything substantial, you know. The So actual everybody, engagement would be, the actual engagement would be that he actually Bahut Baloch comes and tells you कि भाई जो मैं कह रहा था अभी तक गलत है, you know. That would be mm, actually to scare people off with identities is not something that is uncommon in this yeah, country. लेकिन I'll tell you शाहब, I mean कुछ चीजें जो है वो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस की होती हैं। गलतियों को भी तस्लीम करना चाहिए कि जहाँ पर गलतियाँ जी, जब तक वो नहीं मानी जाएँगी, आई डोंट थिंक कि इसका जो है उस तरह इज़ाला mm, जो है वो जी। और लेकिन मैं यही कह रहा हूँ कि आप ये कैसी कैसी अकाउंट बना लें या कोई भी अकाउंट बना के आप लोगों को डॉक्स करते रहें। जब तक आप एट अ स्टेट लेवल नहीं करेंगे, पहली बात तो ये है नो वन इज़ गोना बिलीव यू। ओके, सो आप डॉक्स तो आपने कर दिया, बट यू कुड बी रॉन्ग एंड पीपल माइट थिंक द रीज़न व्हाई यू आर नॉट डूइंग इट ऑफिशियली इज़ बिकॉज़ योर सोर्सेज़ माइट बी चॉपी। तो आप अगर अपना सोचिए ना आईएसपीआर वाले बंदे आके खुद बोलते हैं कि जो दुख्तर बलूचिस्तान ने जो बाहोट को डॉक्स किया है, अगर वो ये कह दें और आगे से बहुत अपना मास्क उतार के बोल दे तुम झूठ बोल रहे हो, ये मैं हूँ, मैं आपका शक्ल दिखा रहा हूँ, तो फिर तो फसल हो जाएगी ना कि यार आप आपने मैं आपकी पर्सनली नहीं इन्फॉर्मेशन जानता, गलत थी। मैं पर्स अब लेट्स कम ऑन टू द बिगर कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, अभी एक बहुत बड़ी जंग की एटलीस्ट छिड़ने की फ्लर्टेशन चल रही है इनसाइड ईरान। ओके, एनीथिंग कैन हैपन एंड ईरान हैज अ लॉट ऑफ let's say strategic depth inside Pakistan and Balochistan, sorry, Afghanistan, and even inside Iraq, areas of Iraq. So it's not as simple as कि वो लोग अमेरिकन जाके आपको उधर स्मैश कर देंगे और वहाँ गवर्नमेंट गिर जाएगी। जिस तरह हमने अफगानिस्तान में देखा कि एक तालिबान का एक पूरा नेटवर्क था कि जब अमेरिकन ने हमला किया तो वो मेल्ट अवे कर गए
And after like 2 or 3 years, that's when the actual operation started. ठीक है, उन्होंने अपने they maintain what you वो जो C3 कहते हैं ना, the communication command control, they have all that stuff in line अपने मदारिस नेटवर्क को इस्तेमाल करके। इस तरीके से ईरान के अंदर एक हाउजा नेटवर्क है, ठीक है, जो उनके मदारिस है, ठीक है। तो हो सकता है कि आप उन्हें गवर्नमेंट गिरा दें, ठीक है। पाकिस्तान के अंदर भी वही इन्फ्लुएंस है। एग्जैक्टली, तो आप उनको सिस्टम गिरा तो देंगे, लेकिन ईरान से बाहर जो उनके लॉजिस्टिकल नेटवर्क्स हैं, उनकी फाइनेंसेस हैं, पाकिस्तान में आप देख लें कितने सारे एशिया रहते हैं, उनकी बाकायदा ज़ैनबीयून ब्रिगेड जो है, वो पूरी की पूरी पाकिस्तान से ही है। So it's not as simple as knocking them down. So how are you seeing that the conflict developing? कि ये पाकिस्तान के लिए कितना बड़ा थ्रेट बन सकता इट्स गोना बी अ प्रॉब्लम फॉर पाकिस्तान अगर इस किस्म की चीजें होती हैं है? ईरान के अंदर। बट आई फर्मली बिलीव, at least logical, that's what my logical mind says, इसके कोई एक्सटर्नल इंटरवेंशन ईरान के अंदर इन टर्म्स ऑफ बम्बार्डमेंट या कोई इस किस्म का ऑपरेशन जिसमें फिजिकल Regime इन्फॉर्मेशन change. हो, वो पॉसिबल नहीं है। नहीं, रेजिम चेंज को करने के लिए आपको बहुत तरीके हैं। Mm. सॉफ्ट बेली ऑफ ईरान इज इट्स बॉर्डर एरियाज जो ऊपर जो है सीरिया के साथ से जो है वो शुरू होता है राइट इनटू टुवर्ड्स पाकिस्तान। Azerbaijan. यू हैव अच्छा। डिफरेंट एथनिसिटीज जो प्रो रेजीम जो है वो नहीं है। फिर ईरान के अंदर जो है इसराइल का अपना जो नेटवर्क ऑफ इन्फ्लुएंस है Mm. विच वो अब तो हमें पता है Absolutely. हिस्टोरिकली against nuclear scientists as well as the leadership of Hamas as well being Right. targeted in जो है वो ईरान। एंड देन द मासा अमीनी का जो प्रोटेस्ट था और उसमें भी स्टेट की लेजिटिमेसी और अगर कोई एनार्किक सिचुएशन जो है वो बनती है तो स्टेट किस तरह उसके पास क्या जो है वो बचता है और हाउ फॉर इट टू क्रैक डाउन और किस किस्म की सिचुएशन जो है वो बन सकती है। अभी तो जो नेगोशिएशंस हुए हैं आज उसमें तो कोई ग्लिमर ऑफ होप नजर आता है कि ये चीज शायद नेगोशिएशन से सेटल जो है वो हो जाए। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि जो यूरेनियन नेटवर्क्स की सस्टेनेबिलिटी है वो अमरीकियों को पैलेटेबल जो है या उसको लेनी कंटिन्यू रखना उनके लार्जर इंटरेस्ट में होगा। सो आई फील कि sooner or later what the prognosis is going to come true in one way or another. सो व्हेन दैट हैपेंस ऑब्वियसली उसमें पाकिस्तान का क्या रोल होगा, उसमें अफगानिस्तान का क्या रोल होगा, यू नो लाइक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंडली हमारे मुल्क के अंदर दो चीजें जो है वो आएंगी। एक तो रेफ्यूजीज, दैट्स द फर्स्ट पार्ट, एंड Mm. लेकिन द सेकंड पार्ट इज लाइक मोर डेंजरस, यू नो, और वो ऑब्वियसली एक सेक्टेरियन सेंटिमेंट जो है वो ईरान के साथ जो है वो अटैच है। और अगर हम प्रीवियसली देखें कि किस तरह पूरे स्टेट को जो है वो चोक करने का जो है वो ईरान के पास जो है वो एक चाबी जो है वो है, तो प्रोएक्टिवली स्टेट ऑफ पाकिस्तान उसके लिए क्या कर सकता है? नंबर वन, व्हाट सॉर्ट ऑफ कंटिजेंसी प्लानिंग इज फॉर दैट कि अगर ऐसी सिचुएशन जो है वो बनती है। एंड थर्डली, अगर आप साइलेंट बैठते हैं तब भी प्रॉब्लम है, और अगर अमेरिकी जो है वो इंटरफेयर करके कोई डायरेक्टली जो है वो काम जो है वो कर रहे हैं तो आपका किरदार जो है वो हिस्टोरिकली जो है वो कैसे जो है वो देखा जाएगा? दीज आर फ्यू क्वेश्चंस, लेकिन ये तो अभी इस टाइम पर हम हाइपोथेसिस के ऊपर जो है वो बात कर रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि कोई डायरेक्ट ऑपरेशन नहीं होगा। अगर रेजिम चेंज ऑपरेशंस होंगे भी ईरान के अंदर, आई थिंक इट्स गोइंग टू कम फ्रॉम इनसाइड ईरान, जिसके शायद एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस होंगे, लेकिन कुछ ऐसे ट्रिगर्स होंगे जो शायद जब कोई तारे जो है वो छेड़ेगा तो उसकी कोई शक्ल जो है वो निकलना जो है वो बाहर जो है वो आएगी। Mm. अभी तक तो ऐसा लगता नहीं है कि ऐसा कुछ है, लेकिन यू कैन नेवर से नेवर। आई मीन जो शिया मिलिशियाज इराक के अंदर हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट एट दिस टाइम, नंबर वन। Yeah. Secondly, the Iranians also sort of have shown their cards on what they are capable of doing and what they did in Latakia. Right. Uh, if they want, they can actually sort of, you know, move around Ahmad al-Shara and his people like very उसको हिलाने झटका जो है वो दे सकते हैं। Mm. ये इसका जो ऑडियंस हमेशा कहती है कि दे ऑलवेज से कि आप बात कर लेते हैं लेकिन उसका कॉन्टेक्स्ट नहीं समझाते हैं। आई थिंक अगर डोमिनो इफेक्ट जो है वो देखें, इट आल्सो हैज टू डू अ लॉट अबाउट यू नो व्हाट ट्रम्प एंड मोहम्मद बिन सलमान विल डिसाइड इन टर्म्स ऑफ द लार्जर इशू फॉर द पैलेस्टीनियन स्टेट। Mhm. अगर तो उसमें कोई एग्रीमेंट जो है वो आ जाती है जो पैलेस्टीनियंस के लिए हो, तो उसके नेगेटिव इम्पैक्ट जो होगा वो डायरेक्टली सीरिया पर आएगा, Mm. बिकॉज दैट्स अहमद अल शरा इज सिटिंग राइट ऑन द बॉर्डर विद इजराइल. And a larger chunk of his followers are basically from the Salafist thought of an AQ process, Al Qaeda process. Mm.
हुँ, they would lose belief in that governance system. हुँ, एंड ऑब्वियसली एक ही यूके जो है वो ईरान के साथ अपने ताल्लुकात भी हैं, जी, यू नो, एंड सो राइट, दैट विल सॉर्ट ऑफ ब्रिंग डाउन दैट पूरा एक डोमिनो इफेक्ट जो है वो शुरू हो जाएगा। या, हाउ एंड सो यू सी जो इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि जो सीरिया का कॉन्फ्लिक्ट है दैट्स वेरी सेंट्रल टू दिस इन टू पाकिस्तान, अफगानिस्तान, टू ईरान एंड द लार्जर मिडल ईस्ट, और एंड इट हैज दिस पोटेंशियल कि इट्स अ टिकिंग टाइम बॉम्ब कि अगर इसको किसी तरीके से रिजॉल्व करने की कोशिश भी जो है वो की जाए इन एनी वे, अगर उसके सोल्यूशन होता है या नहीं होता, इट हैज मेजर पॉलिटिकल मार्कर्स टू एस्केलेट इनटू अ फुल ब्लोन वॉर, जिसका डोमिनो इफेक्ट गवर्नेंस के ऊपर जो है वो आना शुरू हो जाएगा। या, खैर, तो मेरे या, ख्याल में जो है वो उसमें यूएई की गवर्नमेंट और जो सऊदी अरेबिया के अंदर जो अपने एलिमेंट्स हैं जिनको खामोश वो रखा गया है, एंड दे आल्सो स्टार्ट स्पीकिंग अप, राइट, राइट, so this could actually go anywhere at this point as we are speaking. या, So या, we have to wait for that kind of thing to happen. मैंने सिर्फ समझाने के लिए इसलिए कोशिश की कि लोग अक्सर कहते हैं कि आप वो स्टेटमेंट जो है वो दे देते हैं, लेकिन उसका हाँ, वो समझते नहीं है, तो फिर वो कहते हैं कि या तो आप झूठ बोल रहे हैं या फिर आप वैसे ही हवा में बात कर रहे हैं. So to sort of give that sort of an understanding in terms of what these various scenarios are, that what will happen और उसकी escalation किस किस तरीके से जो है वो हो सकती है. या और उसके इतनी रिकर्सिव एलिमेंट्स हैं कि एक चीज़ को छेड़ेंगे तो 10 और खुल जाती है, तो मैं उसको छेड़ूँगा भी नहीं फॉर नाउ, मे बी अनदर एपिसोड। यू राइट Maybe, and I hope we don't need each other to discuss this at some point if it actually starts happening. Yeah. Well, something will happen. It could be day by day कि चलो यार हम लोग 60% इन्वेस्टमेंट से आपको वापस 15 या 30% तक ले आते हैं, ठीक है? और आपकी अगर मिसल स्टॉक पाइल, let's say you have 50,000, let's put it down to 25,000. I'm just kidding, throwing numbers out of my ass, like, you know what I mean. They might come to these agreements, and maybe there are discussions to have be had because of that. Because I think eventually Iran is already taking some steps, like वो इराक से अपनी कुछ मिलिशियाज को जो है डिफैंग कर रहा है, और लेबनान में तो कर चुका है, ठीक है? शायद यमन में भी जो था थोड़ा बहुत अगर है, तो वो भी कर देगा। तो a lot of space that Iran gained in the last 20 years in the Middle East, they're kind of receding. Okay, so इसके भी काफी सारे implications आ सकते हैं, but I'll keep that aside. Towards the very end, I just want to talk to you about पाकिस्तान की जो कहते हैं ना, हमको अक्सर लोग एज अ सैटेलाइट स्टेट देखते हैं कि ठीक ठीक है, हमारे अपनी तप्पड़ होंगी, जैसा टर्की है ना, उसको तो एक प्रॉपरली पीपल टॉक्स हिम इन इक्वल टर्म्स। जैसे आप ट्रम्प आप देखें, वो एर्दोगन से बात करता है, ही टॉक्स हिम लाइक एन इक्वल, ही डजंट इवन ट्रीट नेतन्याहू द वे ही डज एर्दोगन। सो इसी तरीके से हम पाकिस्तान को जब हम नहीं देखते हैं, लाइक अ लॉट ऑफ पीपल सी पाकिस्तान एज अ लैकी स्टेट, ओके? तो इस वक्त हम या तो हम ऑर्बिट चाइनीज ऑर्बिट में है या हम अमेरिकन ऑर्बिट में, लाइक और वी ट्राइंग टू प्ले दिस इन द मिडल गेम। आपको क्या लग रहा है कि हम इन द नेक्स्ट 2 or 3 years, आई नो कि आप अक्सर कहते हैं कि हमको एक साइड लेनी पड़ेगी इन द नेक्स्ट 2 or 3 years, आई एम मोर ऑफ द व्यू के बैलेंस रखा जाए, बट व्हाट डू यू सी एंड व्हाई डू यू से कि यार एक साइड लेनी पड़ जाएगी? बिकॉज वो डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन जिस तरह की एस्केलेशन हो रही है, हम्म। उसमें लगता नहीं है कि आप जो है वो न्यूट्रल रह सकेंगे, सॉरी टू यूज दैट टर्म। एंड जितनी हम लाइक, बिकॉज वी ऑब्वियसली कीप ऑन टॉकिंग अबाउट दिस डे एंड नाइट, हाउ दीस थिंग्स हैपन, द वे दैट थिंग्स आर चेंजिंग सो ड्रास्टिकली। पहले तो मैं समझ के 4-5 साल लगेंगे, अब मैं क्या 2 साल पे आ गया हूँ, एंड आई थिंक कि शायद इससे भी जल्दी जो है वो चीजें जो है वो हो रही है। बल्कि आज तो एक स्टोरी भी थी CNN पर, आई मीन, जिसमें कहा गया था कि जो ट्रम्प ने टैरिफ्स जो है वो लगाए थे, तो उनके कुछ एडवाइजर्स थे वो बीजिंग के साथ वो कर रहे थे बैकग्राउंड में कि हम लगाएंगे और फिर उसको जो है वो कम कर देंगे, आपने नहीं लगाना। बट बीजिंग डिडंट लिसन बिकॉज दे डिडंट वांट टू बी देयर टॉय, कि वो लगाएंगे और हम जो है वो पैसिव आंसर्स में जो है दोबारा जाकर ये कम करेंगे, तो फिर हम कहेंगे हाँ कम हो गया और रिलेशनशिप बेहतर बनाएंगे। वो दे स्लैप बैक योर डायरेक्ट 89% ऑफ दोस या, टैरिफ्स। तो यू सी दैट कि वो जो इकोनॉमीज एक दूसरे के साथ बिल्कुल डायरेक्ट क्लैश में, दे हैव या, नॉट क्वाइट, और साइमल्टेनियसली आई मीन इफ यू आर देयर पार्टनर, सो दे एक्सपेक्ट के यस व्हाई नॉट, या, आप हमारे साइड पर जो है वो रहेंगी। जी। Yeah. और देखिए, So, बिल्डअप तो हो चुकी है ना, वो डिएगो गार्सिया में अपने B2 बॉम्बर्स लेके आ गए। अब चाहे वो आप ईरान के लिए यूज करें या ना करें, लेकिन चाइना तो आपकी फोकस में आ गया ना। सो इट इज डेवलपिंग इनटू समथिंग। मुझे डर इस बात का है कि देखिए, चाइना हमारा नेबर है। आई फॉर द सेम रीजन मैं कभी भी ये नहीं कहता कि हमको ईरान इंडिया के साथ पंगे लेना चाहिए, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे वो हमारे नेबर्स हैं। हम उनको अगर एक छोटे स्कर्मिश या बैटल में मार भी दें,
इन द लॉन्ग टर्म वो हमारे नेबर्स हैं, वो हमको हमेशा हमारे साथ हॉस्टिलिटीज़ में अगर होंगे दैट्स नॉट गुड फॉर अस। तो सिमिलरली विद चाइना अगर हम लोग बहुत ज़्यादा अमेरिकन आई डोंट बिलीव कि अमेरिका विल टेक चाइना ऑन डायरेक्टली इन ताइवान या जहाँ पे भी हो। बिकॉज़ वो अगर डायरेक्टली जाएँगे यू नो दोनों आप दोनों न्यूक्लियर नेशंस हैं। यू कैन स्मैश ईच अदर टू बिट्स। तो यही होगा कि दे विल यूज़ प्रॉक्सीज़ फिलीपींस को यूज़ करेंगे या जितने भी और कंट्रीज़ हैं वहाँ पे टू Don't say मेक that because ऑस्ट्रेलिया whenever you mention proxy wars, I mean, तो because हमारा खिता वैसे भी सारी proxy जंगों का जो है वो महवर जो है वो रहा है. So whenever somebody mentions कि the future is a proxy wars, and you're not the only person who thinks that way, you know. तो ऐसा लगता है कि we'll be again into a larger spate of conflict between या uh, in Cold War, you know. या But लाइक I hope that लाइक फॉर happens. I hope that इट्स वन does. इश्यू दैट आई हैव इसके ऐसा ना हो कि ये फॉर एग्जांपल वो साउथ से उनको बाय बीफिंग अप फिलीपींस एंड ऑल दीस अदर कंट्रीज जितने भी के चाइनीज पर्ल स्ट्रिंग्स हैं सारे नेशंस को वो लोग रैप अप कर रहे हैं ताकि दे कॉल इट द इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी फ्रॉम अ बिजनेस पर्सपेक्टिव बट इट्स मोर लाइक अ मिलिट्री स्ट्रेटजी उनको ये लोग आर्म कर रहे हैं ताकि ये चाइना को एटलीस्ट सदर्न साइड से थोड़ा सा सर्कल कर सके वेस्टर्न एंड से ये क्या करना चाह रहे हैं चाइना के वेस्टर्न एंड से ये चाह रहे हैं कि ये पाकिस्तान से थोड़ा डिस्टेबलाइजेशन करें ताकि जिनजियांग से थोड़ी इन्फ्लुएंसेस आए a lot of these fighters, Uyghur fighters are in Syria right now. Maybe they might have some kind of agreement किया इनको वापस चैनल करो दोबारा towards Xinjiang. तो और पाकिस्तान इसमें शायद कोई रोल प्ले करे. I don't know. I hope not because China at the end of the day is our neighbor. So See, these are the things that I keep on hearing on daily basis from different people in wherever I sit. yeah, न्यूयॉर्क टाइम्स ने आई थिंक गालिबन 2013 के अंदर या 14 के अंदर एक स्टोरी की थी that they believe that the third world war will actually start from the South China Sea. It was an interesting story even at that time. And it suggested a lot of things on what the counter China policy was at that point as well. इस किस्म की मैसेजिंग आप एक अखबार के अंदर तभी करते हैं जब एनोनिमस ऑफिशियल्स जो है वो बात करते हैं because they want to send out a certain message in certain ways. एंड जो आप बात कर रहे हैं इतनी एक्सट्रीम लेवल पर क्योंकि हम तो ऑब्वियसली जब असेसमेंट्स करते हैं तो असेसमेंट्स की बेसिस पर सारी सपोजिशन होती हैं और मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ कि अगर दो बंदे जो है वो एक दिन में जो है एक कमरा बना सकते हैं तो फिर चार बंदे जो है वो आधे दिन में बनाएंगे और आठ बंदे जो है वो क्वार्टर दिन में जो है वो बता देंगे एंड बाय द टाइम यू रीच 256 तो आपने सोचा भी नहीं और कमरा बन गया है mm, So, what starts with supposition will always end with supposition. yeah, Like, the Bangladeshis talking to the Chinese is interesting because they are actually offering them the Bay of Bengal, the yeah, route that they require and say कि नहीं ये वाला इस्तेमाल करें. mm, Uh, साथ म्यांमार जो है वो लगा हुआ है, which is always of interest, mm, for the Chinese as well. And there are people who actually think कि ये चाइना का हिस्सा है. There's a lot of things that are actually going on in these areas. इतनी जल्दी ये culminate नहीं होगा. mm, At some point it will. At some point in some of this, uh, there is attraction for obviously war and violence. mm. Okay. Well, whatever that happens, I hope it doesn't happen. But if it does happen, you know, if my YouTube channel still exists, I'll try to maybe tackle that. Lekin thank you so much for your time, Takhad bhai. I've been meaning to talk to you for a while. For these reasons कि हमारे पाकिस्तानी स्पेस पे ये हो ही नहीं रहा है. And I at least मैं अपने साइड से स्टार्ट करूँगा. I know I have only like 511 followers or subscribers on my channel, which is a good segue. Please subscribe to the channel and share this video. मैं चाहता हूँ कि हमारे यहाँ एक इंडिजिनस जो हमारी we have a lot of value to add. We have हमारी जो narrative है, it actually needs to reach to the Western audience as well. They need to know how we're thinking. So when they make their solutions, they understand कि यार what are the limitations. I normally जो हमारे यहाँ एक perception है कि गोरे जो है वो हमेशा इसलिए करते हैं कि वो कि हमको पसंद नहीं करते हैं. ऐसी बात नहीं है. वो इसलिए करते हैं कि कभी-कभार हम लोग खुद अपना केस प्रॉपर्ली प्रेज़ेंट नहीं करते हैं. तो वो हमको इस तरह गलत चीज़ें कर जाते हैं एंड देन वो थोप देते हैं हमारे ऊपर वो पॉलिसीज़. इफ वी एंगेज देम एंड वी गिव देम अ गुड केस, वी टेल देम कि यार ये आपकी स्ट्रैटेजी काम नहीं करेगी, तो वो भी इंसान के बच्चे हैं, वो भी सुन लेंगे कभी-कभार. So thank you so much for your time You're and welcome. depending on how things develop, I will be calling you again. ठीक है? Hopefully we'll catch up. We'll catch up also. Thank you. Thank you. Yeah, thank you so much.